नाउ फाइन राइट तो जदि अब देखिबा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी व्हाई दिस थ्योरी इज रिक्वायर्ड so some new faces also here today so इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरत है नहीं है ना ऐसे नहीं कि चाहे मतलब हर कोई पूछूंगा तो नहीं किससे भी डोंट वरी बट ऐसे नाम बोल दो एक बार थोड़ा याद हो जाए क्या है ना ओके यू फ्रॉम कटक ओके देन योर बैक साइड अध्याशा ओके 3 जन ना तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी now continental drift theory jodi ame kahiba कि before that mapping I have finished so though once more we will have revision for the newcomers right don't worry for that the continental drift theory what it talk about see the present day world is distributed in a particular way like somewhere India is situated somewhere South America somewhere North America somewhere else so like the present day map of the world is this the present world map if you see this one is the present world map this one the present world map like so this one is the present world map but continental drift theory what it talks about कि whether the world was since the beginning whether the world was like this or this is the time or in this present era in the geographical era we are distributed like this whether the land is distributed like this so continental drift theory basically talks about the geological history of earth and the land masses and the evolution of continent so basically when we talk about continental drift and theory तो ये तीनटा वर्ड को मुझे डिकोड करी फास्ट वन इज कॉन्टिनेंटल दैट मीन्स द रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ आम कह रिजिड लैंड masses when I say rigid land masses that means those portion of the earth like the continents the rigid land masses whenever I say rigid land masses like let's say the Asian part of rigid land masses of the Asian continent Asia European continent or the African rigid landmass that means the African continent Australia South America North America so these are the rigid part of the earth rigid why they are called rigid kahinki kuhaje because rigid अर्थात कौन no change किसी change हबो ही नहीं जेमती कि as usual that would be remain same in the geological history but the flexible part is the oceanic part these oceanic parts are the flexible part because the formation and destruction happens to the oceanic floor rather than the continent would not have any only shape of the continent will change otherwise the area of the continent would not change continent area के भी change हबो नहीं जत्ती की अच्छी सत्ती के हबो let's say this is the total land mass this one total land mass they would be divided into different continent ताकू भांगी देले different continent रही जिवो तो जदि हमें different continent रे देखिबा लाइक ये देखो जदि सब लैंड को गोटे जगह में मिसई देबा एमती देखा जिवो so that means these are the total rigid land masses of the earth केला rigid land mass now surrounding part that would be the flexible part of the earth अर्थात the formation and destruction happens to the oceanic plate but the continental plate remains rigid throughout the geological history ना बुझा पड़िबन काहाकू throughout the geological history the same area will be there area would not increase neither it would be decrease nor it will increase area increase decrease हबो नाही कार continent रो but the area something that means हमें कहबा जो continental plate हमें कहबा ये खाली तार shape change हबो for example the shape of Africa is this one is Africa right Africa रे change हे जो पुनी कौन पे because of the Rift Valley because of the Great African Rift Valley then the shape of Africa will again there would be deformation of the plate किसी deform से जो something changes will be happens there कोठी देखा जो in the eastern part the eastern part रे देखा जो but these are the total rigid masses तले rigid masses कहले बुझी परिबो simple हम कहबा those are the continental part of earth को हम कहूचे rigid part आगे basic जिंस जान देबा then flexible part is the ocean तले oceanic plate is the flexible part the flexible part is what
that is the oceanic part is the flexible part, right? Then as per continental drift. Now when we say drift अर्थात कौन, that means something is moving, something is moving, simple हम कह something is moving. Now that means geological history रे जदि हम देखिबा whether this landmass are stationary कि नहीं ताकू चेक करिया पे आसला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. बट एक्जाक्टली ये थ्योरी रा किछि बेसिक हम जानिबा. आ पूर्वरु आसला गोटे टेलर हाइपोथेसिस. आ पूर्वरु जदि हम देखिबा टेलर हाइपोथेसिस थिला. अच्छा तमन को माने ऑकवर्ड फील होनी तो जो माने न्यू कमर्स अछ जोठी न बुझी परिबो पचारिबो हैला कने सेटा को रखिबोनी तुरंत पचारिबो ना. ड्रिफ्ट रा मीनिंग कोन? फर्स्ट हमें कॉन्टिनेंटल कहले बुझी गेले दैट मींस दोज आर द पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट और द रिजिड मासेस. देन हमें आसीबा ड्रिफ्ट पार्ट को. ड्रिफ्ट मींस व्हाट? समथिंग इज मूविंग अवे, तो सेटा हमके ड्रिफ्ट. नाउ थ्योरी कोन? थ्योरी मींस समथिंग इज प्रूवन, समथिंग इज प्रूवन. तो थ्योरी अर्थात आम किसी जिनस कहूचे इफ यू आर नॉट बैकिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट प्रूविंग, देन दैट वुड बी टर्न इनटू हाइपोथेसिस. ताले ताको हम कोन कहबा? हाइपोथेसिस. बट इफ यू आर प्रूविंग व्हाट यू आर सेइंग दैट वुड बी थ्योरी. ताले ताको हम कहबा थ्योरी. दैट मींस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दिस इज नॉट हाइपोथेसिस, ये होची थ्योरी. ठीक अछि. ताले जदि प्रूफ न करि परबो देन दैट विल बी टर्न इनटू हाइपोथेसिस. तो थ्योरी रो मीनिंग हम बुझिले. सो दैट मींस इट विल हैव सम एविडेंसेस. ताले एविडेंसेस नल तो प्रूफ करि परिबोनी. So this theory will have also evidences. Evidences भी रहिबो ताकू प्रूफ करिया पे yes the continent is moving or not. तमे देखिबा ना ता पूर्व रे भी किछि हमें इमेजेस देखिबा. तो ये थ्योरी काहे के आसला? Now this is the man so behind this theory. The man behind this theory is Alfred Wegener. आ ना होची Alfred Wegener. W-E-G-E-N-E-R. Alfred Wegener. The man behind this continental drift theory is Alfred Wegener, the German climatologist. The German climatologist. Climatologist. The German climatologist in 1912 he gave this theory. The German climatologist in 1912 he gave this theory. The theory was put forward by him. जो ना ऑनलाइन रोचे सुनाउचे ना, right? In 1912, Alfred Wegener, W-E-G-E-N-E-R, put forward the theory of hypothesis. Actually, प्रथमे कौन थिला मुटे कहि दिए. Initially, when he proposed this one, it was drift hypothesis. Initially, it was not theory. In 1912, when he proposed this idea of continental drift hypothesis, initially it was not theory. Later in 1960s that turns into theory. Answer sunibo. When it was proposed that was drift hypothesis, continental drift hypothesis in 1912. But by 1960s the hypothesis turned into theory. ठीक अछि. तापुर initially from the since the beginning it was not theory. ताले किछि लोको तांको हेल्प करिसंती प्रूफ करिया पे बा आउ कहार किछि वर्क द्वारा सेटा प्रूफ हे जाइछि. बुझ बरछन. तो ता परे सेटा थ्योरी रे कन्वर्ट हैला. देन एमिति कोन हैला कि एक्चुअली ताले दैट मींस ए जो गैप को हम देखबा ऑलमोस्ट 50 इयर्स रो जो गैप थिला इट वाज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस. सिंस 1912 टू 1960s जाए it was continental drift hypothesis. It was not continental drift theory नथिला. ना काहे कि एमिति हैला because something what he said that was not proven. से निजे प्रूफ करि पन नथिले. That was erroneous. किछि erroneous थिला तांको थ्योरी रे जो एरर पई तांको क्रिटिसाइज करा जाउथला and he was facing the backlash from the different section. तेणु करी कि since 1912 to 1965 जाए जदि हम देखिबा it was a hypothesis. Then 1965-66 बेलू ये थ्योरी रे कन्वर्ट हे गला. ताले याकू किए हेल्प कले ना हम देखिबा आउ दीटा थ्योरी आसीबारु दीटा थ्योरी आसिला ता द्वारा ये भी गोटे आउ गोटे थ्योरी रे कन्वर्ट हे गला. तो से दीटा कोन एमती 1960s रे ताले किछि चेंज हैला जोथि पई हैला. तो प्रथम कथा 1960s को हम कोन को ज्योग्राफी रे ताकू कहा जाय क्रिटिकल फेज इन ज्योग्राफी. इन 1960 जेतरा हम कहू दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल फेज इन ज्योग्राफी. आफ्टर 1960s परे जदि हम देखिबा तो ज्योग्राफी को हम कहू क्रिटिकल फेज इन ज्योग्राफी पर्टिकुलरली इन 1970s रे कहिबी मु.
तो से फेज को कहा जाए क्लासिकल फेज ज्योग्राफी रे कहा कहा जाए 1930s रु नहीं कि 1965 एटा हला क्लासिकल एज इन ज्योग्राफी ना ज्योग्राफी रे क्लासिक हाँ 1930 रु नहीं कि देखो ये डिफर करे किए कहते 1910 1920s अल्फ्रेड वेगनर को भी किए नंते क्लासिकल बट एग्जैक्टली जदि हमें क्लासिकल एज इन ज्योग्राफी देखिबा दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1930s एंड exist or sustain up to 1960s 1965 ना 1960s परे बेसिकली 1970s एंड 80s ये फेज को हमको ज्योग्राफी रे क्रिटिकल फेज इन ज्योग्राफी रे ताकू क्रिटिकल फेज कुहा जाए मु एथि पई कहूची ए टर्म्स क्लासिकल 1930 1960s सेमिति पूरा खाली 60s लेख ना आकु मु एथि पई कहूची दो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट हमें किछि जिंस ना लेखिले कोन के मार्क को एनहांस करिबारे हेल्प करे फॉर एग्जांपल सपोज हमें किसी जिनस लिखुचे कि वी मे से जेतरो लेट्स से somebody is writing this answer कि continental drift theory or continental drift theory of Alfred Wegener if somebody is putting कि Alfred Wegener was one of the factor to term the geography or he should be considered into the part of classical age of geography because of his contribution for the development of geography as a subject बुझे तो ये भाई सेंटेंस जेतरा भी लिखुचे दैट विल कारण जे लोकटा खाता देखुचे somebody is checking the geography note definitely he or she will be from the geography background हाँ कि नहीं थिबो तांका background so that he or she will be impressed by going through this such kind of sentence and the vocabs के yes that means this candidate is having geography awareness तर awareness अछि otherwise तुमको लागो कि superficial हाँ खाली रट्टा मारी के आछंती लिखि जंती तो सेटा लिंक ही परिवनी तो जेतला हमको लेट्स से फॉर एग्जांपल तो ये लोगों को कहीं कि हमें क्लासिकल फेज रे एथि पे नबा कारण तुमको टिके मु कहि दूची कि क्लासिकल फेज हमें कहीं कहूचे गोटे जिंस अच्छा भाबो व्हाई द क्लासिकल एज जेतला हम कहूचे इन इंडियन हिस्ट्री जेतला हम कहू द क्लासिकल एज कहा को कहा जाए द गुप्ता एरा तो दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल एरा इन द इंडियन हिस्ट्री द गुप्ता एरा को हमें क्लासिकल कहीं कहूचे बिकॉज ऑफ द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एवरीथिंग जैसे आर्ट एंड कल्चर कथा नहीं जाओ म्यूजिक कथा नहीं जाओ डांस कथा नहीं जाओ ये जेते सब आर्किटेक्चर आर्ट डांस कल्चर डेवलप होता सेमती ज्योग्राफी को एथिपे हमें क्लासिकल एज को ये टाइम रे बिकॉज ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व एंड मैच्योर बुझिपारछ ना ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व एंड मैच्योर ता पूर्वरु ज्योग्राफी इट वाज नॉट ए ब्रॉड सब्जेक्ट और इट वाज नॉट ए मैच्योर जमती सोशियोलॉजी पॉलिटी हिस्ट्री एमने मैच्योर हे येथिले ता पूर्वरु एमन के पाखरे बहुत सारा थ्योरीज थिला बहुत सारा भलो भलो राइटर्स थिले बुझ परछ नहीं सो दे वर हैविंग एवरीथिंग ऑलमोस्ट so that is why those who were the advocator of geography as a discipline as a school तो से माने बहुत एफर्ट लगई छंते ई टाइम रे कि ज्योग्राफी को गोटे स्कूल रे कन्वर्ट करियो ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन रे कन्वर्ट करिवा बुझ परछ ना मो कहे कथा so that is why this time is called as the classical era or the classical age in geography ना बुझी परवनी classical age कहीं कह जाए because so many geographer came and they contributed जो आज आम ज्योग्राफी आज ए सब्जेक्ट पढ़ुचे सो ज्योग्राफी इट वाज नॉट ए सब्जेक्ट अर्लियर ये सब्जेक्ट नथिला सेथिपई गोटे एज अच्छी ज्योग्राफी रे डार्क एज भी कहा जाए से टाइम रे ज्योग्राफी को सब यूनिवर्सिटी रे मना कर देले कहले पढ़ा हबनी ज्योग्राफी आज ए सब्जेक्ट एमती किछि नाही पढ़ा हबनी सेटा जानिबो परे हैला ऑप्शनल रे पढ़ेबी कि ज्योग्राफी को से माने डिनाई कले कि ज्योग्राफी इज नॉट ए सब्जेक्ट ताको पढ़ा हबनी बहुत सारा यूनिवर्सिटी रे सिलेबस रो हटै दिया गला भी हैला से टाइम रे भी तो डार्क केस गोटे भी अच्छी मीडिया वाले एज रे थिला तो जहाँ भी हो तो दैट मीन्स हमें आपको क्लासिकल फेज रे एथिपई नउचे बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द मैच्योरिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट बुझि परछन और एज ए डिसिप्लिन सेथिमे आपको मध्य कहबा ये जने जेतल तमे लिखुचे कि हाउ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व हैला तो आंकर कंट्रीब्यूशन भी हमें लिखि परिबा तल ज्योग्राफी रो फादर के हम्बोल्ट यदि तुमको पछरियो कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी हम्बोल्ट HUMBOLT हम्बोल्ट तो तांको ना होची कोन हम्बोल्ट मॉडर्न डे फादर होची हम्बोल्ट एरास्थेनस कुहा जाए बट दी ज्योग्राफी रे दी जण फादर अछि गोटे हला एरास्थेनस तो एरास्थेनस एथिपे तांको फादर कुहा जाए बिकॉज़ ही कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी बट एग्जैक्ट फादर होची हम्बोल्ट हम्बोल्ट इज द एग्जैक्ट फादर एरास्थेनस को एथिपे कुहा जाए ओनली बिकॉज़ ही कॉइन्ड द वर्ड बुझि परछ ने बट बाकी जदी हम कहबा हम्बोल्ट करेंट कही हाँ कि नहीं हम्बोल्ट करेंट कोठी देखा जाए वेयर विल बी द हम्बोल्ट कोल्ड करेंट
कोठी देखा जिवो साजिद कोठी देखा जिवो साउथ अमेरिका पेरू चिले कोस्ट देखा जिवो हाँ कि नहीं कहला तो दैट वुड बी तो ये हमें बुझीगले कि हाँ दैट मीन्स ये फेज जो क्लासिकल फेज पर आसब तुमर ताले क्लासिकल फेज रे बहुत सारा थ्योरी डेभलप होइथिबो निहाती ताले मेजॉरिटी ऑफ द ज्योग्राफी जो थ्योरी हमें देखिबा दैट हैज डेवलप्ड इन क्लासिकल फेज कहले ये 19 मतलब 10 12 टू नहीं कि 1940 50s ए भितरे बहुत सारा थ्योरीज डेभलप होइछि इन ज्योग्राफी रे सेतमे आगु कहजे क्लासिकल फेज देन क्रिटिकल फेज परे सेटा एठी तो नाही तो डिस्कस करबानी देन आसीबा हमें ड्रिफ्ट ना हम कहथली ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरी ना व्हाई this continental drift theory become theory by hypothesis become theory in 1960s रे कहीं की theory रे convert हैला because of two more theory that is sea floor spreading ठीक लिखि देता कहीं की हैला एक otherwise that could have termed only hypothesis but by the 1960s or 70s now this continental drift hypothesis of Wegener was called or started to calling the theory because of sea floor theory सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बिकज ऑफ ताले हम देखा दीटा थ्योरी आसला से टाइम रे गोटे हला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सॉरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी गोटे हला सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आ गोटे होची प्लेट टेक्टोनिक आ गोटे होची प्लेट टेक्टोनिक ये दीटा हाँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग ना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक ये दीटा थ्योरी आसला 1960s रे तो ये दीटा थ्योरी जो 1960s रे आसले एमान को जी प्रमोट कले लेट्स से आम कहबा कि प्लेट टेक्टोनिक एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग दे वेर सेइंग कि आमे जहा आज कहूचे कि ये लोकोटी जहा कहउथला ठीक कहउथला जदियो से बुझेई पारु नथला बा द कांसेप्ट व्हिच वाज एडेड ऑफ द थ्योरी बा आम कहबा फोर्सेस व्हिच ही टॉक्ड अबाउट जदियो दैट वाज मतलब हैविंग एरर एंड एरोनियस बट आंकर जो आइडिया टा ठीक थिला ताकू किए प्रूफ कले ये दीटा थ्योरी ये दी जन से 1960s रे थ्योरी रे कन्वर्ट हो गला ना भी बुझी परिबनी तो ये दीटा वर्क आसला कौन ना प्लेट टेक्टोनिक एंड हमें कहबा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये दीटा थ्योरी आसला 1960s रे दैट टू थ्योरी प्रूफ्स दैट दिस वाज आल्सो ए थ्योरी हाइपोथेसिस नुह तेणु करी से 1960s रु आकू कहा गला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रादर देन हाइपोथेसिस ए बुझी परिबो राइट आम बुझीगले कि हाइपोथेसिस एंड थ्योरी रे केमती है गोटे हाइपोथेसिस टा थ्योरी रे कन्वर्ट हैला ना आउ टिके बैकग्राउंड के जिबा कि वेदर ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इमेजिन्ड ये प्रथम लोग थिले कि अर्थ ना डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अछि एमिति हेई पारि थांता ये फिगर देखि पारुछ तो ये फिगर को जदी आउ टिके मन नै जिबा को कने बैकग्राउंड टा पढिले तुमको मन रखिया पे इजी हबो ये देखो ताले this would be the chronological separation of the continent ये continent एमिति थिला धीरे धीरे सेपरेट हेई कि ये दिस इज द प्रेजेंट ना ई भलिया भाबी बारे whether Alfred Wegener was the first person to think कि हाँ एमिति हेई थई पारे ता पूर्वरु के थिले बुझ परछन तो जदि हम देखिबा ता पूर्वरु मध्ये थिले के टेलर हाइपोथेसिस ताको हम कोन कहबा टेलर हाइपोथेसिस ना पूर्वरु मध्ये हम देखिबा दैट वाज टेलर हाइपोथेसिस सो टेलर हाइपोथेसिस जदि हम देखिबा ही वाज द पर्सन हु टॉक्ड अबाउट के कॉन्टिनेंट सब ड्रिफ्ट करूची टेलर ता पूर्वरु इट वाज 1908 टेलर हाइपोथेसिस 1908 दैट मीन्स अर्ली 20th century so टेलर हाइपोथेसिस 1908 रे टेलर वाज द पर्सन हु वाज टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग so that was hypothesis कारण से प्रूफ करि पालेनी तो से भी हाइपोथेसिस हे गला तो ये थिला टेलर वाज द फर्स्ट पर्सन बट टेलर पचारिबो नाही सेटा हाइपोथेसिस थ्योरी कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग कि जन तो कहउथिले फर्स्ट टाइम सो ही वाज द टेलर तो टेलर फर्स्ट टाइम कहले आ ता ऊपर मध्ये से डिस्कस भी करथिले जदियो तांकर टारगेट अलगा थिला ये दीटा थ्योरी कंप्लीटली बा हाइपोथेसिस कंप्लीटली डिफरेंट ना देखा Taylor hypothesis was different from the Wegener hypothesis. ये दी जनकर एजेंडा completely different. हला देखो टेलर कौन कहउथिला कि टेलर्स रो एजेंडा थिला to discuss the formation of young mountains of the Alps around the world. जेतोले
कौन सी जिनस ये थ्योरी जो आनिले ये आम जहाँ ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस किसी गोटे इमाजिन करथिबे ना किसी तो गोटे भाभी थे से पहुँचले तो फास्ट जदि आम देखा ये तुमको लगे कि प्रथम या भाविकी करथिले कि ना तांकर टार्गेट थिला अल्फ्रेड वेगनर वाज ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट आम से फास्ट लिखी ना क्लाइमेटोलॉजिस्ट सो हिज टार्गेट वाज टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज बट अल्टीमेटली ही एंडेड ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ना बुझी पारलनी तांकर टार्गेट थिला टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज कि हाउ द क्लाइमेट इज चेंजिंग तो ताकू स्टडी करिवार थिला बट अल्टीमेटली एंड अप हो गले कोठी जेमती तुम जानते अमेरिको वेस्पुसी कि अमेरिका को डिस्कवर करथिले किंबा तुम कथा हाँ ना किंतु से बाहर बाहर थे कौन ये सब इंडिया को खोजिया बाहर थे मैंने सब हाँ कि नहीं तो किंतु अल्टीमेटली दे डिस्कवर्ड आउ गोटे कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कले ये भी सेमती अल्फ्रेड वेगनर जो रिसर्च करवा स्टार्ट कले एजेंडा वाज टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज नॉट टू डिस्कस द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बट ही एंडेड अफ इनटू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाहर थे गोटे कम आउ गोटे पहुँचले एंडेड हो गला बुझिपार सेमती टेलर जो डिस्कस करिया स्टार्ट करते जो टेलर हाइपोथेसिस बा ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ऑफ टेलर तांकर एजेंडा थिला टू डिस्कस द माउंटेन फॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड बट ही एंडेड अप इनटू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस से भी सेमती एंडेड अप होइथिला बुझिपारछन ना अल्फ्रेड वेगनर जदि आमे देखिबा ताली अल्फ्रेड वेगनर जो आमे देखुचे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सो इट वाज हिज टारगेट वाज ताली आंकर ऑब्जेक्टिव कोन थिला ताली आमे देखिबा his objective was तो लिखि दियो अल्फ्रेड वेगनर in 1912 12 तो कहबानी ता पूर्व भी स्टार्ट कर देथिले निज काम बट आमे ऑब्वियसली हम लिखवा 1912 when he put forwarded the continental drift hypothesis 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 but his idea was to study Alfred Wegener जदि idea में देखिबा to study his idea was to study the climate change in early 20th century the climate change in early 20th century and its region the climate change in early 20th century and its region the objective was this being a climatologist that means Wegener being a climatologist तांकर objective थिला climate change को study करिबा then ultimately ended up हेले continental drift hypothesis रे तो आंकर टारगेट हम देखले ना एबे से कहले ताले climate change जदि हम देखबा since हम कहबा the beginning of 20th century the climate change was evidented in the means हम कहबा obviously the melting of glacier ये सब तो start ही थिला तो early since the beginning of the 20th century तो सेते यूरोप रे जदि हम देखबा क्लाइमेट चेंज र सिंबल धीरे धीरे बा हम कहबा एविडेंस आसीथिला तेणु करी ताकू बेस करी कि ये कोन कले डिस्कस कले अपार्ट फ्रॉम दैट जदि तमे पढितबो जेमति जर्मनी रे कोल मिले आ कि नहीं कोठी राइन वैली रे तो राइन वैली इज हैविंग कोल ताले जदि हमें जर्मनी रो क्लाइमेट को देखिबा कोल्ड क्लाइमेट ऑब्वियसली कोल्ड क्लाइमेट सेमती नॉर्थ सी रे तमे देखिबो पेट्रोलियम मिलुची नॉर्थ सी इज हैविंग पेट्रोलियम रिजर्व पेट्रोलियम एंड ऑयल तो यही भाया जिते देखा लेट्स से पोलैंड इज हैविंग कोल जर्मनी इज हैविंग कोल रशिया इज हैविंग कोल यूक्रेन इज हैविंग कोल being the high latitudinal country despite the fact the climatic repercussion they are having the coal can the coal कोठी मिलिबो in the tropical region हाँ कि नहीं जोठी high natural vegetation will be there high temperature high humidity high precipitation that region will have the coal but जदि हमें देखिबा the countries like Poland and Germany जत्र जर्मनी रे कोल मिलुची या ऊपर क्वेश्चन मार्क आसिला तांको माइंड रे कि these countries are situated in high latitudinal लोकेशन जदि हमें देखिबा तांको पाखर कोल कुआडू आसिला ताहाले एया हिथिबो ईदर जर्मनी रो क्लाइमेट आगुरु ट्रॉपिकल थिला
से कोल से फॉर्मेशन होता है क्लाइमेट चेंज होगी कोल्ड हो जाइए कोल्ड टाइप रो नहले जर्मनी आउ कौटी थिला मूव करके एठी पळे आसी ना बुझी पाले मो कहा कथा ईदर जर्मनी रो क्लाइमेट चेंज हो जाइए अर्लियर इट वाज हैविंग ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट और इक्वेटर से नेचुरल वेजिटेशन बहुत होती एंड कोल्ड कन्वर्ट हो जाइए और जर्मनी यूज्ड टू बी समवेयर एल्स ड्रिफ्टेड टू दिस प्रेजेंट कंडीशन एठी पळे आसी ना बुझा पड़लानी मो कहा कथा ठीक अच्छे तो तांको भितर दीटा थिला कि खाली क्लाइमेट चेंज रो कजेस कौन ही पारे तो ही इमेजिन टू कंडीशन तो लिख ही imagined two condition for the climate change. He imagined two condition for the climate change. He imagined two condition for the climate change. First one, either the continents are stationary, shorter कहूँ पूरा, either the continents are stationary, either the continents are stationary in their respective places, either the continents are stationary in their respective places throughout the geological history, throughout the geological history, throughout the geological history, either the continent is stationary in their respective places throughout the geological history, but the climate is changing, but the climate is changing, but the climate is changing, hence a certain place on earth, hence a certain place on earth experiences, a certain place on the earth experiences different sort of climate, different sort of climate, SORT, different sort of climate in different times, geological times, in different geological times. तो मैंने लिखुच ना जो मैंने ऑनलाइन रछ राइट देन सेकंड को आसीबा ये थिला तांकर फास्ट से इमेजिन करले कि एया ही थई पारे कि लैंड टा स्टेशनरी अछि क्लाइमेट चेंज होछि भाबो लेट्स से जेएनके अच्छा भाबो 500 वर्ष तले जेएनके रे बरफ आउरी अधिक होउथिला धीरे धीरे जेएनके रे देखो बरफ कमी कमी जाऊँगी ए डेली पेपर आसूची कि हिमालय ग्लेशियर मेल्ट होची द ग्लेशियल एरिया द क्रायोस्फेरिक एरिया इज डिक्रीजिंग अच्छा एमती हो पारे कि आफ्टर 100 इयर्स हिमालय रे टोटाली बरफ न थई पारे ताले हिमालय रे क्लाइमेट लेट से पुणी 500 वर्ष पर आउ थे बरफ हो ताले एमती हो पारे हिमालय जोठी कि सेठी अछि क्लाइमेट फ्रिक्वेंटली चेंज होची ता द्वारा आमको कौन देखा जिवो दैट मीन्स सेम जगह रे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लैंडफॉर्म देखा जिवो अच्छा जेते बेले एबे भाबो बरफ अछि ताले तमे जेते जेएनके को जाउछो बुलिया पिन तुमको कोन देखा जिवो ऑन द सरफेस ऑफ रॉक देयर वुड बी सम ग्लेशियल स्कार्च मार्क काने जेते गोटे आइस टा मूव करके जिवो देयर वुड बी सम स्कार्च जेते बरफ नथिवो से स्कार्च मार्क हमको कोन लागिवो दैट मींस सम स्कार्च मार्क्स आर देयर बिकॉज ऑफ देयर वाज स्नो और देयर वाज आइस एबे आउ नाही पुनी आउ थरे आसी जिवो तेमिति देन सेकंड ऑप्शन सेकंड कहले ना एथिरे कोन फर्स्ट ऑप्शन के आउ टिके जदि मु कहिबी देयर इज परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट परमानेंट अछि कहले मूव करूनी फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हिमा ताले सेकंड को आसीबा सेकंड थॉट तांकर बा इमेजिनेशन से कोन भाबिले द क्लाइमेट इज स्टेशनरी सेकंड को आसीबा द क्लाइमेट इज स्टेशनरी throughout the geological history the climate is stationary throughout the geological history
but the continents are moving, but the continents are moving, but the continents are moving, ठीक है, but the continents are moving। तो ये है जदि आम देखा सेकेंड, तो ये आपको नहीं कि बट ही थॉट कि तांको माइंड रे आसिला कि बेटर टू गो विथ द सेकेंड ऑप्शन, तांको लागिला कि आई विल गो विथ द सेकेंड ऑप्शन, कारण से भाविले कि दैट मीन्स द क्वेश्चन वाज ऑन द परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट, बुझिपारछ ना। सेकेंड ऑप्शन टा जोटा मु कहली कि क्लाइमेट ठीक ठाक अच्छी, कॉन्टिनेंट मूव करूची, तो सेकेंड ऑप्शन को से तांको लागिला कि इट वाज हिज इंट्यूशन एंड ही पिक्ड द सेकेंड ऑप्शन एंड मूव्ड अहेड। तापर से रिसर्च करिया पे लागिले, तो तांको लागिला कि परमानेंसी ऑफ द कॉन्टिनेंट मस्ट बी क्वेश्चन, के छा ऊपर क्वेश्चन मार्क आसिला। माइट भी एमती भी तमे कहि थई पारो कि बिफोर दैट टेलर मध्य कहिथिले कि देखो कॉन्टिनेंट परमानेंट नुहो, माइट भी से कथा को तांको माइंड रे स्ट्राइक करथई पारे कि जदि टेलर ए कथा कहूची और से भी एक कथा कहते कि देखिए ठीक अच्छे रिसर्च करवा स्टार्ट करवा, से रिसर्च करवा स्टार्ट कले क्लाइमेट चेंज रो। तो ऑब्जेक्टिव कौन था, क्लाइमेट चेंज केमती होची जानिबा, ऑब्जेक्टिव नथला कि कॉन्टिनेंट वेदर कॉन्टिनेंट इज मूविंग और नॉट, जेहेतु कॉन्टिनेंट मूव करूची सेथिबे क्लाइमेट चेंज होची तांको अनुसार, तले एवरी प्लेस विल एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। भाव रशिया खाली मूव करके इक्वेटर आड़ को आसी जीवो, तले रशिया रे बे पोलर काइंड ऑफ क्लाइमेट होची, देन रशिया विल अगेन फेस ट्रॉपिकल टाइप ऑफ और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ताले गोटिए कॉन्टिनेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट दैट विल एक्सपीरियंस with the time, as the time passes that will experience different type of climate or the different sort of climate because it's moving सेति पे ना बुझा पड़िबो नेबे। तो एबे आमे देखिबा, तो एक नेक्स्ट आसीबा ताले हाँ देखो, हाँ ये जो जोटा मु कहली इट वाज हिज इंट्यूशन कि दिस कुड हैव हैपेंड, this might have happened in the geographical past or geological past, jodi am in the geological past this might have happened and that is why the condition is right now here। तो प्रेजेंट कंडीशन को से देखिले, तो ये भी हम देखिबा। तापरे तांकर अजम्पशन ना लिखो, अजम्पशन ऑफ, अजम्पशन ए डबल एस यू एम पी टी आई ओ एन, अजम्पशन, अजम्पशन ऑफ द थ्योरी। ताले देखो जेते बेले कोनोसी जिंस आमे कहूचे ना कि तमे कौन कहूच, लेट्स से समबडी कहीं जने भलो कि खराब, वी आर अज्यूमिंग समथिंग से एमिति हेइथिबो, तो अजम्पशन बेसिस रे आमे बिहेव करू, किछि जिंस कोन हेते अजम्पशन बेसिस रे बिहेव हे जाय, तो ये आगे अज्यूम कले कि एई जिंस हेइ पारे, तो अजम्पशन आगे लिखिबा, अजम्पशन ऑफ द थ्योरी, अजम्पशन 1 पॉइंट वाइज लिखिबो। ये जेमती मु लिखि दउची पूरा तुमरो आंसर भलिया ए भलिया ही लिखिबो, आंसर जेमती लिखुची मु एटा आंसर लिखिबो। इंट्रो रे जेमती कहली मु इंट्रो रे कि इट वाज डेवलप्ड इन द क्लासिकल एरा ऑफ ज्योग्राफी, द कंट्रीब्यूशन इनिशियली इट वाज ए हाइपोथेसिस later it turned into theory in 1960s because of the contribution from the plate tectonic and sea flows, जेमती कहिची सेमती ही तमे लिखिबो, बुझिबो नै आज यूजुअल। अच्छा देन आमे अजम्पशन को आसीबा, एमती लिखले कौन हम कि जे खाता चेक करिवो ना ताकू इजी हम, तो अजम्पशन को कौन करिवो सब बेले ये कौन करिवो जेतो लिखुच ताकू गोटे ब्रैकेट रे लिखिदेव, ब्रैकेट रखिदेव, माने ताकू बॉक्स रखिदियो, ब्रैकेट न बॉक्स रे, ताकू गोटे बॉक्स रखिदियो कौन पई, कारण सेटा विजिबिलिटी आसीबो। आजम जेते बेले हेडलाइन टाकू सब बेले बॉक्स रे रखिवो, आउ जो सब पॉइंट टाकू अंडरलाइन करिवो, बुझिबो ना, सब बेले हेडलाइन को बॉक्स रखिवो, सब पॉइंट खाली अंडरलाइन करिवो, तापर एक्सप्लेन हबो, तापर एग्जांपल, एटा हला आंसर राइटिंग रो फॉर्मेट ना, बुझि पन्नो। अच्छा नेक्स्ट हम लिखबा अजम्पशन, अजम्पशन 1 शियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, सियाल कैपिटल रे लिखबो एस आई ए एल, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा एस आई एम ए। ना फर्स्ट अजम्पशन, अजम्पशन सेकंड, assumption second over Sima, SIMA, Shial is floating over Sima,
option. Then second assumption, in the geological past, around 300 to 200 million years ago, around 300 to 200 million years ago, आकु आगे assumption टा लेखिला पर तापर डिस्कस करिवा. 300 to 200 million years ago, all the land masses were concentrated at a single point. All the land masses were concentrated at a single point, as a single landmass, at a single point, as a single landmass, called Pangea, Pangea, P-A-N-G-E-A, Pangea. ताको अंडरलाइन कर दबो. तो जोड़ा की वर्ड रहला ताको अंडरलाइन कर दियो, है ना. सेम थी. देन थर्ड पॉइंट, Pangea was surrounded by mega ocean. Pangea was surrounded by mega ocean. Time same रहिबो 300 to 200 million years ago. Pangea was surrounded by mega ocean 300 to 200 million years ago, called Panthalassa. ताको हमें कौन कहिबा? Panthalassa, राइट. कहले मेगा ओशन, ये सुपर कॉन्टिनेंट से मेगा ओशन. सो सुपर कॉन्टिनेंट की पांजिया, ताकू घेरी की जोटा रहबो से जब तुमरो Panthalassa. देन आसबा फोर्थ पॉइंट, टाइडल फोर्स. लिखो टाइडल फोर्स and polar fleeing force, F-L-E-E, polar fleeing force were responsible, polar fleeing, F-L-E-E-I-N-G, polar fleeing force were responsible for the breaking and driving of continents, or movement, for the breaking and driving of continents. अर्थात the tidal force ये continent को break करिवो, move भी करिवो, और polar fleeing force. So two forces. That means जदि तुमको पचारिवो कि continental drift theory, the two forces he used, they were polar fleeing force and tidal force. Next point, एक मिनट रो, आओ कौन सा थी? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, द Pangea was located in South Pole. The Pangea was located in South Pole. The Pangea was located in South Pole. Present day, at present day, Durban. Present day Durban, South Africa. Durban is a city, South Africa. तो ये रहिला तमरो assumption. ताले assumption को हमें देखे देले केते रहिला 5टा, राइट. सो दीज वर द assumption. ताले assumption रु जदि हमें देखिबा तो एबे assumption थिला, तो ये assumption बेसिस रे ताले हबो थ्योरी, तापर आसबो एविडेंसेस. ठीक अछि, तापर हम नेक्स्ट लिखिबा एविडेंसेस. बट एविडेंसेस पूर्वरु एविडेंसेस एमति लिखिबो, ताको बॉक्स रखिबो, तापर गोटे हमें एविडेंसेस लिखिबा तळगु तळ. ठीक अछि, पर ता पूर्वरु आमे आगे assumption टा बुझिले आगु बुझिबा. ठीक अछि, तो assumption को आगे बुझिबा. फास्ट कौन कहली मु कि assumption रे दीदी देखिबा कि Pangea. Now that means ये हला तुमरो Pangea. तो this one is what? Pangea. Now Pangea कौन कहली कि when we bring, let's say
let's say okay, to pull all the land masses. So present day the condition is like this. This is the present world. If I bring all the land masses to this particular point, if I drag all this land mass, that would be joint like this. एमती ही जीवो ताले ये सबू land mass गोटे जगह मिसी गले ताको हम कहबा पांचिया. That would be called Pangaea. That means all the water body will be surrounding the Pangaea. That would be mega ocean. एबे बुझाई जीवो ताले that means Pangaea is what हम कहबा super continent. That would be mega ocean. ताले Pangaea is simple when we put all the continents into a single points or together, single points and together joints together, that would be a supercontinent. And mega ocean कहले ता चारिपटे. That means mega ocean कहले गोटे ही हबो ना Pacific. So earlier the present day mega ocean रो part किए Pacific. That means जदि तुमको कहा जिवो present day mega ocean रो part हैला Pacific and Pacific ocean रो area बढ़े आउ कमे. ध्यान से मन रखो. Nowadays the Pacific ocean area is shrinking. Atlantic चौड़ा होची. Atlantic टा दिन आसो Pacific है जो Pacific टा close है जो पूरा कौन है जो हेटा close है जो ठीक अछि. तो कौन पई तो ए आमे देखिबा. So that means this was the condition. एठी लिखा है देखो 250 million years ago. ताले आमे केते लिखले 300 to 200 right. So that means ए बे आमे देखिबा. तापरे कौन हैला now 200 million years ago देखो separate हवा start हैला separation ना सेपरेशन धीरे धीरे ब्रेक हैला. ये देखो गोटे जगह थिला तापर धीरे धीरे ब्रेकिंग हवा स्टार्ट होला तापर ये ब्रेक ही सब स्प्रेड हे गला प्रेजेंट डे कंडीशन हे गला. सो ये एमिति हेची. तो क्रोनोलॉजिकली एमि ताकू देखिबा. तो जहा भी हो पांजिया और पांथालासर हमें मीनिंग बुझले ना. व्हेन आई से एबे हमें आउ गोटे जिंस देखिबा कोन कहतली कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा. एटा बुझा पड़ियो समस्त को ना बुझा पड़लेन काहा को बुझा पड़ियो. दैट मींस दिस वुड बी योर अर्थ. So here would be, so this one is core, ये कौन रहेगा core, mental, crust, ताले this one is what, CL is floating over सीमा. ताले जति हमें किबा ताले ये होची float करूची. Now why this one is floating? Why? Because of कौन पई density difference, because of density differences. कौन पाए डेंसिटी डिफरेंसेस एथि पे आउ तो किछि नो. सो द डेंसिटी ऑफ सीमा इज मोर रादर देन द सीएल. दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंसेस द सीएल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा. तो जदि तुमको कहीं भी पचारिबो कि व्हाई सीएल इज फ्लोटिंग, सीएल मींस व्हाट, दैट इज द क्रस्ट. ताले ये कोन क्रस्ट एंड ए क्रस्ट गोटे पार्ट होची कि कॉन्टिनेंट. सो क्रस्ट रो दीटा पार्ट अछि. गोटेला कॉन्टिनेंटल पार्ट और द रिजिड पार्ट which I was talking about in the early, right, and one is the soft part, that is the oceanic part. So that means when I like divide the crust, some would be continental part, some would be oceanic part. So this would be soft part, this would be rigid part, continent would be rigid part. That is why continents are called also rigid land masses, right, or cratogen, और ताकू कौन कहा जाए cratogen, रिजिड लैंड मासेस और क्राटोजन. ये सब टर्म्स गुड़ा लिखी देई था. और क्राटोजन और क्राटोजन सेम. दैट मींस रिजिड क्राटोजन कहा को कहबा. क्राटोजेन्स आर सिंपल, क्राटोजन आर सिंपल रिजिड लैंड मास, ओल्ड लैंड मास. जेमते कि अफ्रीका ये ओल्ड. ये भाबो सपोज गोटे तमरा अंडमान निकोबर तमे ताकू कोन कहबन कि क्राटोजन, because that is not old part of the earth. Only old part of the earth will be called as the cratogen. बुझि परछन only old part, सेही part को कहा जो cratogen. So they are floating. That means हम कहबा CL is floating over सीमा. कौन पई डेंसिटी डिफरेंस जोगो. तो ये हमें देखि देले. अच्छा ताले फर्स्ट पॉइंट है जो कि सीएल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा. देन सेकंड पॉइंट कौन थिला पांजिया एंड पांथालास आमे बुझी गले. ठीक अछि. देन आसबे हमें टाइडल फोर्स. ना देखो टाइडल फोर्स एक्सर्टेड बाय हुम, मून. ताले टाइडल फोर्स कहा द्वारा मून एंड सन. तो बेसिकली जेतला हम कहू टाइडल फोर्स दैट टू बी मून. ना सेम कथा मध्य कहिथिले कि टेलर मध्य सेम कथा कहिथिले कि जदि आज आम देखुचे कि द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स दे आर बीइंग ड्रिवन बाय हुम, दैट इज द टाइडल फोर्स. और टाइडल फोर्स कहा द्वारा होची
मून द्वारा होची द टाइडल फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड थ्रू द मून्स एक्शन बा तार निजर ग्राविटी आम कहवा तार जो तो सहीटा को एबे देख मून्स रो एते पावर कि से कॉन्टिनेंट को ड्राइव करूची से क्वेश्चन मार्क उठीथिला ना बुझ पारना तो मून रो एते पावर के गोटे कॉन्टिनेंट को ब्रेक कर दउची से जेमती कि देख ये सब लगी कि थिला तो एटा ब्रेक हो गला केमती देख दिस पार्ट स्टार्टेड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द अफ्रीका कि साउथ अमेरिका देन ड्रिफ्टिंग अवे अटलांटिक ओशन फॉर्मेशन हैला ता भीतर गोटे कोन नुआ ओशन आसला दैट टू बी द अटलांटिक ओशन फॉर्मेशन दैट मीन्स द अटलांटिक ओशन फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ साउथ अमेरिका फ्रॉम अफ्रीका and North America from the Europe. So that led to the formation of Pacific Ocean. This would be southern and this would be the northern Pacific, Atlantic Ocean. तो Atlantic Ocean रो formation एमिति हेछि ताले ये ब्रेक काहे की हैला because of the tidal force, because of the tidal force कहार मून रो तो ये कथा अल्फ्रेड वेगनर कहले कि because of the tidal force of the moon was able to break the continent was broken and it was drive towards the or driven towards the west कि जो आमे जेतले कहूचे हमें टाइडल फोर्स रो दीटा फंक्शन फर्स्ट से ब्रेक करिवो सेकंड रे वेस्ट को नहीं की जीवो ध्यान से मन करो तार दीटा काम फर्स्ट से ब्रेक करिवो सेकंड रे अजम्पशन को एक्सप्लेन मु करोची तमे जेतले लिखिबो अजम्पशन को एक्सप्लेन करिवा दरकार नहीं तमे एबे नोट बनउचो एक्सप्लेन करिक लिखिबो बट आंसर रे लिखिबा दरकार नहीं बुझबो आंसर जेतले लिखिबो सेतले दरकार नहीं एबे किंतु तमे लिखियो पड़िबो पुणी नोट जाले दरकार तो टाइडल फोर्स किए करिवो द टाइडल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मून्स फर्स्ट पॉइंट सेकंड दैट हेल्प्स टू ब्रेक द कॉन्टिनेंट एंड ड्राइव द कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स द वेस्ट ए रहला ये किए कहले अल्फ्रेड वेगनर सो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर द बिकॉज ऑफ द टाइडल फोर्स द कॉन्टिनेंट्स वर ब्रेक और द कॉन्टिनेंट्स वर ब्रोकन एंड ड्रिवन टुवर्ड्स द वेस्ट द कॉन्टिनेंट्स वर ब्रोकन and driven towards the west. For example, South America, which was broke away or separated from the Africa and drives towards the west. आम कह तो ये ताकू साइड को नहीं की गले ता द्वारा कौन है गोटे नुआ कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन है न्यू कॉन्टिनेंट फॉर्म देखियो कह बिल्कुल बिकॉज as the earth is moving from west to east, so the general जदि हमें देखिबा let's say moon is here ठीक अछि and earth is here as the moon को भाबो let's say static as the earth is moving toward from the west towards the east something is like putting let's say pressure here और हमें कहबा concentrating the energy into a single place तो ये relatively west को जीवो यदि मु आको फोकस करी ये ताको एमती भाव एटा को तुम कैच करी रखलो थ्रू द ग्रेविटी बा तार टाइडल फोर्स ये तो आडू को मूव करी जीवो तो ये रिलेटिवली वेस्ट को पळेबो ना हां कि नहीं तो रिलेटिवली कोन हो जीवो वेस्ट को मूव करी पळेबो बुझ परछ नै बिकॉज़ as the earth is moving towards the east ये तो ईस्ट को जाउची वेस्ट रु तो रिलेटिवली कॉन्टिनेंट गुडा को जो वेस्ट को मूव करी जीवो बिकॉज़ ऑफ द टाइडल फोर्स जोगो सेथमे से वेस्ट को मूव कर बुझ परबे तो रिलेटिव मूव करूची बिकॉज़ ऑफ द relative movement through the tidal force breaking and moving towards the west तेणु करी कि हमें देखबा the South America and North America they relatively moves towards the west because of the tidal force of moon first एता को ब्रेक करिवो then it will drive towards the west एला tidal force रो कामो then हमें देखबा polar fleeing force जोटा मु कहथली polar fleeing force second force कथा हमें जे देखिबा polar fleeing force now when we say polar fleeing force देखो polar fleeing force first of all he has not talked about details about what is that से ता विषय किछि कहि नांती कि हां सेटा केमिति ओरिजिन हैला कोन हैला फॉर एग्जांपल टाइडल फोर्स as he said the source of the tidal force is the moon सेमिति there was no such discussion on the polar fleeing force simply he said हां ताले देखो polar fleeing force को डिस्कस करिवि मु डोंट वरी ताले हम कहबा से कोन कहले देखो कि polar fleeing force is the force here is the all continents were concentrated कोठी थिला साउथ अमेरिका रे सॉरी साउथ अफ्रीका रो डरबन सिटी रे थिला तो सेइठू ताले साउथ अफ्रीका कोठी होची साउथ रे तो एइठू कोन हैला माने सब नॉर्थ आड को मूव कले नॉर्थ आड को कहले कोन इक्वेटर और in other terms we will say the continents were moving towards equator for example भाबो ये रहला
आम कह दिस वुड बी द सदर्न पार्ट एठू कौन है आड़ को मूव कले जमती देख ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर हियर फ्रॉम ये टिके आसला ये पलि आसला ये पलैला तो ये कौन है दैट मीन्स हियर इज इक्वेटर तेणु सी नॉर्थ को कहले इनडायरेक्टली कहले कि the land mass which were concentrated here the south pole they move towards equator can obviously equator को आगे equator को आसीबो then it will cross the equator to reach here तेणु करी कि अल्फ्रेड वेगनर कौन कहले the land masses started to move towards equator कौन पई because of polar fleeing force towards equator that is why India 8 वसे कि 80 पहुंचले एटा देखो इंडिया this one is here India moving and coming here ताले ये मध्य 8 वसे कि 80 के ताले ये मूवमेंट टुवर्ड्स whom ताले मूवमेंट कुआडे करूची टुवर्ड्स इक्वेटर तो इक्वेटर को क्रॉस करी 80 से पहुंचले यूरेशिया पाखरे तो ये रहला ताले आकु से कहले पोलर फ्लीइंग फोर्स ना पोलर फ्लीइंग फोर्स केमिति जनरेट होची सो बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस गोटेला बॉयंसी फोर्स आ गोटेला ग्रेविटेशनल फोर्स ताले पोलर फ्ली फोर्स टिके हम डिस्कस करिबा तो पोलर फ्ली फोर्स ऑरिजिन्स टिके लिखि दो पोलर फ्ली फोर्स जदि हम कहबा पोलर फ्लीइंग फोर्स polar fleeing force origins due to कौन पे gravitational force and buoyancy force ये दी जनकर the exchange between gravitational force and buoyancy force द्वारा गोटे फोर्स जनरेट हुए ताको हम कह पोलर फ्लीइंग फोर्स ना तुम कहबो ताली ये दैट कुड हैव buoyancy BOUYNCY buoyancy now buoyancy force को जदि हम देखिबा and gravitational force को जदि हम देखिबा ये दी जनकर एक्सचेंज रे ध्यान से सुनिबो इन द एक्सचेंज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड buoyancy force there would be another force will generate that would be called as polar fleeing force साको में कोन कहबा polar fleeing force तुम को ये केमिति होउची ताले अच्छा भाबो अर्थ इफ अर्थ वेयर फ्लैट इमेजिन करो नाउ अर्थ इज नॉट फ्लैट दिस इज लाइक अर्थ इज लाइक हम कहबा स्फीयरिकल इमेजिन करो जदि अर्थ फ्लैट ही था कौन ही था ना आगे हमें ठीक है buoyancy फोर्स को आसीबा लेट्स से ये हम गोटे बोट और शिप किछि भी नहीं जाओ और ये बोट इज फ्लोटिंग ये जितरो गोटे बोट फ्लोट करूची buoyancy फोर्स कोन करूची ताको buoyancy फोर्स रो काम कोन अगेंस्ट द ग्रेविटी सो दैट से फ्लोट करिवार होची काहे कि बिकॉज़ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द जेतिकी से वाटर को डिस्प्लेस करिवो सेतिकी buoyancy फोर्स एक्टिव रहबो काना डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही करे तो जेतरो डंगीटा भासुची जेतरो हम नै कि रखी दोचे ताको पानी रे द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस दैट विल ट्राई टू अगेन कम बैक टू द सेम पोजीशन सेटिक आसी पिंग चाहिबो सो दैट ए काउंटर देखा जाए तनो को दैट वुड बी अगेंस्ट द ग्रेविटी बट ग्रेविटी कोन कहूची टुवर्ड्स द सेंटर ग्रेविटी कोन कहबो टुवर्ड्स द सेंटर हां कि नहीं तो ये रहिबो तो ये दी जनकर एबे भाबो एक्सचेंज जेतर होउची गोटे जगह रे buoyancy फोर्स भी अछि और गोटे जगह ग्रेविटी भी अछि ता द्वारा कोन हबो ताले buoyancy फोर्स कहूची फ्लोट करो दैट मींस कॉन्टिनेंट शुड फ्लोट करबा दरकार किंतु ग्रेविटी कहूची सेंटर को आसो ता द्वारा कोन हबो एंड द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट इज सॉरी अर्थ इज लाइक दिस ये हला अर्थ रो शेप दैट मींस कोनोसी गोटे जिंसो को एठी में रखी देबा लेट्स से एठी गोटे हमें बोट को रखी देइछे हला भाबो एठी हमें गोटे बोट को रखी जाए ना ये जो बोट अच्छी ये बोट ताले ये आरो कौन हबो अच्छा ग्रेविटी कहूची आसो ना buoyancy फोर्स कहूची ना ताले ये कौन करिवो ये सेठी स्टैटिक रहिबो ना स्लाइड करिवो ये स्लाइड करिवो ये कौन करिवो दैट विल स्टार्टेड टू स्लाइड काहे कि एटे जदी फ्लैट ही थांता देन इट कुड हैव स्टैटिक सेतिबे मु कहली इफ द सरफेस वेयर लाइक दिस द कॉन्टिनेंट वुड हैव स्टेशनरी ये स्लाइड भी करी न थांता जेहेतु शेपटा स्फीयरिकल अछि दैट इज बाय स्लाइडिंग धीरे धीरे ना बुझबन तो स्लाइड करूची ए बुझिबो सो दैट इज व्हाई द पोलर फ्लीइंग फोर्स इज
स्लाइडिंग फोर्स ताले पोलर फ्लिंग फोर्स कोन स्लाइडिंग फोर्स ए बुझ परछो so this one is what sliding force so this one is sliding force and the continent is sliding towards the equator slide करूछ कोन पई because of the exchange between the gravitational force and the buoyancy force ना एटा बुझा पड़िबनी कहा को एबे क्लियर तणु करी कि ये कहले कि सेति में से कहले पोलर फ्लिंग फोर्स और द स्लाइडिंग फोर्स ड्राइविंग द continent towards the equator ये equator को नेक had the surface of the earth were flat or it was flattened the continent may not have moved because of the spherical shape that is driving सेति से मूव करी करी जाउची एबे हे जो तली ये रहला में नेक्स्ट अजम्पशन हम देखिबा नेक्स्ट अजम्पशन को आउ जे अछि कि अजम्पशन रे ठीक अछि देखो एटा मु टिके कहि दिए Alfred Wegener said that the present day supercontinent जदि हम कहबा that means Pangaea that was situated in Durban present day Durban city of South America South Africa that to be हम कहि परौ कि साउथ पोल और इनडायरेक्टली तुम कहबो कि साउथ पोल सेटू शिफ्ट हैला किंतु जे तोर टेलर थिले से उल्टा कहिथिले टेलर कोन कहिथिले कि नॉर्थ थ्रू साउथ को आसीची ध्यान से सुनिबो दी जन को भितर डिफरेंस कोन टेलर कहले कि एमिति थिला टेलर कोन कहले देखो एठी किछि लैंड मास थिला एठी किछि लैंड मास थिला एंड दिस वेयर द वाटर ये वाटर थिला तो एपटो किछु आसिला एपटो किछि आसिला दैट वाज द थॉट ऑफ टेलर बट ये कहले ना सबु एठी थिला एठू सबु भागिले बुझि परछ कि नहीं टेलर और आंक भितर डिफरेंस कोन टेलर कहले एठी किछि लैंड मास थिला एठी किछि लैंड मास थिला देन दी जण स्प्रेड हे गले एठू सेपरेट हे कि ये हला एठू सेपरेट हे कि ये माने हेले तो टेलर कहया था ये पूरा उल्टा कहले ये कहले ना ऑल द लैंड masses were here from here started to distributed ना बुझा पड़ो टेलर आंक भितर बट टेलर फोर्सेस भी अलग थिला कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी टेलर से बट ताकू लिंक करिया दरकार नै कने टेलर पछारिबोनी बट मु खाली एथि में कहूची ताकि तमे टिके बैकग्राउंड बिल्ड अप हे परिबो कि हां चंडे हमें कंपैरेटिवली लिखि परिबो जदी लेट्स से somebody is writing comparative answer तो तादर तुमको और भलो पिक्चर मिलियो एग्जामिनर को भी क्लैरिटी मिलियो तो ये टेलर रो थॉट थिला आंक थॉट मु तुमको कहले कि दिस वाज द थॉट ऑफ कारो वेगनर ठीक अछि तो वेगनर वाज concentrated to this particular point तो ये एबे तमरो हे जो पोलर फ्लिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स buoyancy फोर्स वगैरह देखि देले आ तो किछ नहीं जैसे पांजिया पीरियड या फिर ट्रायथनिक पीरियड रो से गुडा को भी तो वागनर का थ्योरी को सपोर्ट कर परबो सेटा एविडेंसेस रे देखिबा ना बिल्कुल कहीं देखिबानी ताको देखिबा ना फॉसिल एविडेंसेस जेमति कि ग्लोसेप्टेरस साइनोग्राथस लिप्टोसोरस सब देखिबा ना हमें है ना अच्छा तुमको कहया था साउथ आडे कहीं रहिबो बढ़िया कथा ना देखिबा एक कथा तो से कहि नांती बट ताका थ्योरी रे जाना पड़ी जो केमिति हो तांको क्वेश्चन सुनो कि तांको काहे के लागिला कि व्हाई he thought कि all the continents were situated or might have situated in the south pole and they started to distribute it एथि पे तांको एविडेंसेस नाउ ध्यान से सुनिबो तांको से एथि पे एक कथा कहले बिकॉज़ ऑफ इंडिया बिकॉज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिकॉज़ ऑफ अफ्रीका तुमको एमनकर पाखरे कोन एमती अछि आंकु देखि से कहले थाले माने पोलर थिला ना प्रेजेंट डे योर पेनिनसुला मतलब इंडियाज पेनिनसुला इज हैविंग ग्लेशियल मार्क जेमिति कि तमे जानथो कि सपोज झारखंड कि छत्तीसगढ़ कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन को जदी देखियो खास करी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तेलंगाना झारखंड ये जो रीजन एठी जो पहाड़ तो एबी भी अछि now these hills and the rocks the boulders are having ice scratch mark माने आइस स्क्रैच मार्क अछि अच्छा वर्तमान कंडीशन रे त आइस हेई परिबनी ताले इन जियोलॉजिकल पास्ट माने कोठी हेई थई पारे साउथ रही परिबो कने एपटो को तो मूव करि परिबनी सेपटो को तो मूव करि परिबनी तो ताले कोठी हेई पारे से साउथ रो ताले तमे फास्ट कथा के सार सेपटो को भी सेपटो आसी जाई पारे भी ए कथा भी तमे कहि पारो ना कि सेपटो किंतु वर्तमान डायरेक्शन देखले इंडियन प्लेट रो कुआडे तो वर्तमान डायरेक्शन कुआडे जाउची टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ताले नॉर्थ को मूव करूची ताले आसीची कुआडू ताले साउथ रो ए जणा पड़ी गेला
दैट मीन्स प्रेजेंट कंडीशन को से कहते ना कि प्रेजेंट इज की टू पास्ट। ध्यान से सुनिबे सेंटेंस, प्रेजेंट इज की टू पास्ट, बुझिपारछ नहीं। बट फ्यूचर ताले देखिए प्रेजेंट को देखिले पास्ट जना पड़ी जिवो एंड फ्यूचर प्रेजेंट कहबो, दैट मीन्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट। हाँ कि नहीं, से स्वामी विवेकानंद कौन कहते कि योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एक्शन है। तुम आज जब न पढ़ हेनी। अच्छा पास्ट केमिति जड़े ये कहीं बसी क्लासरूम रे, बिकज पास्ट से निहाती ग्रेजुएट हो ग्रेजुएशन कर तो से जना पड़ जाऊँगी ये भी सेमती। तो से कहले कि अच्छा ये जब मुव करुचे आड़ को तार ओरिएंटेशन जदि आम देखा तार स्पीड को देखा तो ये जना पड़ुचे कि जमी आरबियन पेनिनसुला नियो। अच्छा ये भी साड़ को मुव करुचे सेपरेट कौटी हो आफ्रिका आरबियन पेनिनसुला सेपरेट हो तो आरबियन पेनिनसुला दैट मीन्स दैट इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो सही आफ्रिका प्लेट भी मूव करुचे नॉर्थ को, आफ्रिकन प्लेट आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये जना पड़ुचे कि ये माने जदि मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ दैट मीन्स ये सब नॉर्थ रे थिले, सॉरी साउथ रे थिले, सॉरी साउथ रे थिले। हाँ कि नहीं, क्या मेजॉरिटी मूव करुचे टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये प्रूफ हो गला। तो दैट इज व्हाई ये देखिबा नाउ एबे आमे देखियो ताले हमरो अजम्पशन सब हो गला। एबे अजम्पशन बुझी परियो समस्त क्लियर ना, काहा को डाउट अछि को अजम्पशन रे हे जिवो आउ किछि बाकी रहला कि अजम्पशन क्लियर हो गला। अजम्पशन ना एबे ठीक आमे मेकानिज्म को आसीबा। डरमन बा साउथ अफ्रिका रे अछि, सेठू मूव हैला। एबे में मेकानिज्म को आसीबा। गोटे मिनिट रुह, तुम ए लिखनी आगे मेकानिज्म पढ़ाई सारे तापर लिखियो है मेकानिज्म को आसीबा। नाउ या पूर्व आउ टिके देख ना वेदर दिस इज द फास्ट पांजिया, ये हैला पांजिया 2, ये हैला पांजिया 2 जोटा तुमको वर्तमान देखुछ तुम आगे दिस वन इज पांजिया 2 दैट मीन्स वी आर इन पांजिया 2। आ पूर्व ताले 1 हेथिबो, ताले 1 केबे हेथिला 600 टू 500 मिलियन इयर्स अगो। ताले पांजिया 1 600 to 500 million years ago Pangea 1 was there. Kale this is not the first time. Jodi bhabo, if this is true or proven from the Alfred Wegener theory that continents, the permanency of the continents are questioned, or there matlab in the geological past there was no sir permanency of the continents, they are doing other this kind of phenomena is going on in the geological past and will also continue in the future. ये चलो ये ताले आप पूर्वर के भी एमती थिबो कि सब कॉन्टिनेंट अलग होता पुणी मिसी पुणी आउ थे अलग हो ये तो ताले ये प्रोसेस चली ये प्रोसेस चली आप पूर्वर जोटा ओल्डेस्ट हमको जना पड़ुची पांजिया 1 दैट इज 600 to 500 मिलियन इयर्स अगो ना बुझा पड़बनी। तो पांजिया 1 आमे नाही, आमे होछु पांजिया 2 रे, वी आर इन पांजिया 2 बुझी पाछो नहीं। ताले सेते बेले गोटे टेथिसी थिबो ताले आमे ताकू कहया पालियोटेथिसी, ये बुझी पाछो ना, एला प्रेजेंट टेथिसी सेला पालियोटेथिसी। कना यूपीएससी एई भलिया क्वेश्चन ही पचारे। सपोज तुमको कहा जिवो कि ताहले किछि माउंटेन पांजिया 1 टाइम रे फॉर्मेशन हेछि, किछि माउंटेन पांजिया 2 रे फॉर्मेशन हबो, ताले माउंटेन भी सब भाग हेजबो एज अनुसार। सेथि पई हमें कहउते जेमति आरावली हे गला ये सब ओल्ड माउंटेन ए माने सेते बेले फॉर्मेशन हेता। हिमालय ए माने पांजिया 2 रे, एबे जो बड़ बड़ माउंटेन देखुछ ए माने वर्तमान फॉर्मेशन हेचंती, सेथि में एमानकर एज कम हाइट अधिक। ताले जेते ओल्ड माउंटेन से पांजिया 1 टाइम रे फॉर्मेशन हेछि, एबे बुझ पाले तो ठीक अछि। तो माउंटेन बिल्डिंग आल्सो डिफरेंट पीरियड डिफरेंट फेजेस रे हेछि। तेणु जो माने पांजिया A1 रे दोज माउंटेन फॉर्म्स ड्यूरिंग द पांजिया 1 क्लोजिंग दे वुड बी डेफिनेटली द ओल्ड माउंटेन हबो लाइक द अरावली, यूराल्स, Appalachian. So these are the mountains they formed during that period of time. वर्तमान जो माउंटेन्स देखुछ लाइक द आमे कहबा एंडीज, एल्प्स कथा नै जो, हिमालय कथा नै जो, तो एमाने होउछंती यंग माउंटेन और प्रेजेंट पांजिया रे फॉर्मेशन बुझबछ। तो ताकू भी लिंक करबा आमे ताछे एबे आमे देखबा कि नाउ डिस्कस करबा एरा मेकानिज्म ऑफ द थ्योरी ना, थ्योरी रो मेकानिज्म को जदि आमे देखबा। बट एक्चुअली तुमको आंसर लिखला बेले एते लिखिया पड़िबो नाही, कने एतिकी लिखले सरीबो नाही। बट आमे जानिबा पई मेकानिज्म टा लिखिबा बुझबछ तमरो अंडरस्टैंडिंग पई। बट एटा आंसर लिखा हबोनी, आंसर खाली इंट्रो, अजम्पशन
एविडेंसेस देन तापर आम टिके एक्सप्लेन ऑफ द थ्योरी कंक्लूजन आंसर टा एमती लिखा हो जेतले ये थ्योरी को मैं आंसर लिखिबा आंसर है फास्ट इंट्रो देन अजम्पशन देन एविडेंसेस तापर एक्सप्लेन करबा थ्योरी को देन कंक्लूजन कर दबा ठीक अछि बट एते नाही कि गोटे गोटे तमे अजम्पशन को डिस्कस करूछ जेमती मु कहली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यू विल हैव रेस्ट्रिक्टेड टू बी 250 वर्ड्स मैक्सिमम यदि हम देखिबा 250 वर्ड्स एते लिखले तो हबनी एक तो स्पेस नहीं दुरे आंसर बेकार हे जो हां कि नहीं जते प्रिसाइज हम लिखिबा तो मेकानिज्म को देखिबा हमें नाउ मेकानिज्म रे कोन हबो दैट मींस हमें मेकानिज्म स्टार्ट्स विथ व्हाट हमें कहबा फोर्सेस mechanism starts with forces tale because of tidal force and the polar fleeing force the continent started separation the separation of the continent started because of the kiye tidal force and polar fleeing force the separation of continent started now the separation of continent here you can see so that means around 200 million years jodi ame dekhiba 250 ru 200 karan Alfred Wegener has not discussed his theory chronologically. Chronologically से discuss करी नांती कि this was this landmass separated fast, then this one second, this were third, एमती से discuss करना थी. So that is why we will not also go like that stage wise. Simply we will also go in generic way. हमें भी general way रे जीवा और the generic way. We will not go into the time scale. Time scale को जीवा नहीं. यानी जेतु से भी देई नांती. तो फास्ट से कहले कि दिस वुड बी द कंडीशन इट वाज अराउंड तो सबले सेति पे तमे भी लिखिबो अराउंड 250 टू 200 मिलियन इयर्स एगो ड्यू टू द जदि हम देखिबा जेतो तमे लिखिला बेले लिखिबो कि अराउंड 200 टू 250 मिलियन इयर्स एगो द सेपरेशन ऑफ स्पांजिया स्टार्टेड ठीक अछि त टिके लिखि देथा अराउंड 200 टू 250 टू 200 मिलियन इयर्स एगो द सेपरेशन ऑफ पांजिया स्टार्टेड the separation of Pangaea. There would be the separation of Pangaea. As the separation of Pangaea started. Ebi exact year to se bhi koi nanti mu kemti kahibi. And neither we will not triangle ourselves into that line. हमें कहीं निजो को tangle करिबा किसी दरकार नहीं बुझ बस नहीं ये सब दरकार भी नहीं किसी दरकार नहीं हला हां जार दरकार हो पर हम डिस्कस करिबा हला then हमें separation देखिबा then separation started that means it was around 250 to 200 million years ago the separation of Pangaea started why because of the tidal force and polar fleeing force then because of tidal force the continents started to move towards the west and because of polar fleeing force the continents were moving towards equator ei habo so some continents were moving towards the west and some were moving towards the equator because of the polar fleeing force right तो ये हमको देखा जो now according to Wegener जदि हम देखबा Wegener said this part this landmass the South American landmass it was broken from the African part and it was driven towards the west because of the tidal force so according to Wegener the South America was separated from Africa due to the tidal force. According to Wegener, the South America was separated from Africa due to the tidal force. And it moved towards west, separated from Africa and it moved towards west, अच्छा वेस्ट को कहीं गला भी बुझ पारिबो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ लाइक द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिलेटिव मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट तो ये हे गला देन तापर लिखिबो देन अच्छा ए तो हमें गला अच्छा फास्ट केमती भाग हैला टिके मु कहि दे क्रोनोलॉजिकली टिके एटा आगे कहबार थिला ना दिस इज लॉरेशिया दिस वुड बी गोंडवाना एटा को एटा सेपरेट ही जाईची चलियो किसी नहीं अच्छा ध्यान से सुनो फास्ट ये गोटे थी देन मिडिल रु सेपरेट हम आगे एमती करिवो आगे मिडिल रु एटा को सब एठी ऐड करके रखिवो एबे एठी सेपरेट हेई छै ना आगो ऐड करके रखिवो जेते तमे फिगर ड्रा करिवो एटा को गोटे करिवो ये ब्लॉक टा को गोटे करिवो
तो ये मझे आम कह गैप आसीगला तो फास्ट ये दुईटा सेपरेट हम फास्ट जब आम कह ये होल लैंड मास विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल रु सेपरेट हम तादर दी भाग रे हम देन सदर्न साइड वुड बी गोंडवाना नॉर्दर्न साइड वुड बी लरेशिया ठीक अच्छे तो सेमती कर दियो किसी ना जदि इफ यू आर नॉट हैविंग ए गुड like what artistic hand then you may have like this okay, all the land masses that got separated and a line developed like this तो एमती तुम कहि परिबो if you are not having an artistic hand मतलब I am not having so you may have तो एमती हम कह देबा तो this water body which emerged this would be Tethys Sea आपको हम कौन कहबा Tethys Sea that means the separation of Laurasia from Gondwana जदि हमें कहबा that led to the emergence of a water body से water body को हमें कौन कहबा Tethys Sea ताल Tethys Sea केमती हला ताल ये दीटा जतरा सेपरेट हले जो मझी रे जो आसिला ये वाटर बॉडी देख लिखाई छै Tethys Sea लिखाई छै ना Tethys Sea ये वाटर बॉडी इमर्ज दैट इज Tethys Sea ना बुझा पड़िबनी ताल Tethys Sea रो फॉर्मेशन अच्छा भाबो तुमको एबे गोटे क्वेश्चन एट होई परिबो एबे कोन करछि माइन्यूट क्वेश्चन आसुछि मतलब डिटेल रे लेट्स से तुमको कहा जो डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ Tethys Sea its present condition and perspectives ताल तुमको कहा जो लेट्स से गोटे एठु हमें क्वेश्चन बनै देबा के डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ Tethys Sea its present status कौन and what would be economic perspective कौन ए क्वेश्चन बिल्कुल हो पारिबो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कौन प्रेजेंट स्टेटस कौन फॉर्मेशन केमिथि हितला ठीक अछि तो हमें Tethys Sea को एमिथि कहबा काना एटा को पढ़ा हबो ताले जेमथि कि Tethys Sea ताले कोन लिखबो सिंपल Tethys Sea आमे जदि कहबा द फर्स्ट सी दैट ओपनड बिटवीन द Laurasia एंड गोंडवाना ता पूर्व तो गोटे थिला ना दैट वाज पांथालासा मेगा ओशन तो ये फास्ट वाटर बॉडी इमर्ज है ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पांजिया अब ये जो वाटर बॉडी थी इट वाज नैरो शैलो लॉन्ग वाटर बॉडी इट वाज ए नैरो एठी देखो एटा हला Tethys Sea एठू पूरा हम जे देखिबा नैरो शैलो लॉन्ग वाटर बॉडी it was a narrow shallow and long water body separating Laurasia and Gondwana ते मझे एमती देखो so that was developing like this ये डेवलप होची Tethys Sea ठीक अछि तो Tethys Sea डेवलप हैला ना फास्ट ताले फॉर्मेशन हला कि Tethys Sea ताले हमें जेतले सेपरेशन केमती हैला देखुचे हमें हाउ क्रोनोलॉजिकली इट सेपरेटेड गॉट सेपरेट अवे so Laurasia then this would then Gondwana will be separated now this part will be total part is Gondwana so this would be central part so heart of the Gondwana will be Africa from Africa South America got separated moved towards the west from here Antarctica this would be Antarctica this one is Australia this one is India this one is Madagascar so that means यदि एबे तुमको क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंडमास ऑस्ट्रेलिया इंडिया मेडागास्कर अरेबियन पेनिनसुला तापर एठू अलगा हिजबो अरेबियन पेनिनसुला सो अंटार्कटिका ये सब रहिला गोंडवाना रो लैंडमास ऊपर यदि हम देखा दे आर द Laurasia दैट मींस Laurasia रा पार्ट की नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड एंड दैट इज व्हाट यूरेशिया द Laurasia रा पार्ट की ग्रीनलैंड North America and Eurasia ठीक अछि दे वुड बी पार्ट ऑफ Laurasia तो ये दीटा में देखितले मझरे के रहला Tethys Sea मझरे रहला Tethys Sea ताले ये Tethys Sea होची मतलब लेटेस्ट आ पूर्वरु आ गोटे थिला Paleo Tethys Sea जेतरो पांजिया 1 थिला ताले पांजिया 1 बेले भी आ गोटे फॉर्मेशन हेतु Tethys Sea दैट वुड बी Paleo Tethys Sea दिस इज हम केबा लेटेस्ट ये रहला ता पूर्वरु आ गोटे थिला Paleo Tethys Sea ठीक अछि तो ये हमें Tethys Sea ना Tethys Sea रो फॉर्मेशन तो देखिला ठीक अछि एबे फॉर्मेशन हे परिबो देन तुमको जे प्रेजेंट स्टेटस कोन
प्रेजेंट स्टेटस होची टेथिस सी स्टार्ट्स फ्रॉम आसाम एंड इन मेडिटेरियन सी ताले जो प्रेजेंट स्टेटस होची द गल्फ ऑफ पर्शियन मेडिटेरियन सी दे आर द पार्ट ऑफ टेथिस सी वर्तमान जदि हम देखिबा होल मेडिटेरियन सी ठीक अछि होल मेडिटेरियन सी पर्शियन गल्फ the northern part of Arabian Sea, northern part of Arabian Sea, Rajasthan desert, northern part of Arabian Sea, Rajasthan desert, Gangetic plain and Gangetic plain and Gangetic plain. ताहले में वर्तमान जदि देखिबा the Tethys Sea stretches over the continent like Eurasia, starts from Assam ru start habo and habo Mediterranean Sea रे ताले तुमको आसाम रे तो वर्तमान नहीं सेटा फिल अप ही जाइछि लैंड रो कन्वर्ट ही जाइछि ना बुझा पड़िबनी दैट मींस Assam Valley, Gangetic plain, Rajasthan desert, they have converted into this area turn into landmass because of the depositional activities. ताहले प्रेजेंट कंडीशन रे some part is water, some part is land, किछि लैंड रे कन्वर्ट ही जाइछि बुझ परछन बट earlier used to be whole a long water body. ताहले Tethys Sea रो वर्तमान कंडीशन दैट मींस wherever the Tethys Sea is there would be oil and natural gas. जेमते कि देखो ये पूरा गल्फ कंट्री जो गल्फ ऑफ पर्शियन एटी बहुत ऑयल एंड गैस मिलुछि तेल सो दैट इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ Tethys Sea, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बुझी परछन नहीं जोटा मु तुमको कहितली कि व्हाट वुड बी द प्रॉस्पेरिटी तो ये हैला से प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत सेथ में पूरा गल्फ कंट्रीज आर द रिच कंट्री हां कि नहीं अच्छा आसाम रे देखो ऑयल मिलुछि तले आसाम रे भी ऑयल मिलुछि बिकॉज ऑफ Tethys Sea गैंगेट राजस्थान रे ऑयल मिलुछि जानिचो बारमेर बीकानेर ए सब रीजन रे बिकॉज ऑफ Tethys Sea अच्छा तमरो Tethys Sea फिल अप है कि हैला गैंगेटिक प्लेन ता द्वारा फर्टाइल लैंड हे गला जहा को हम कहै ग्रेनरी हाउस ऑफ इंडिया यूपी या को कह जाए ग्रेनरी हाउस तो ये पूरा गैंगेटिक प्लेन ता द्वारा किछि एग्रीकल्चर पई बेनिफिट हैला ता द्वारा हम कहबा ऑयल एंड नेचुरल गैस ये सब आसुची तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये सब हे जबो तम नेविगेशन भी होची जेमति गल्फ ऑफ पर्शियन सी होची तो एथेटी नेविगेशन भी गोटे फैक्टर सही परिबो तो बिकॉज ऑफ नेविगेशन ट्रेड वगैरह ही परुची ये भी गोटे फैक्टर्स हम कहि परिबा मेडिटेरियन सी अछि ट्रेड ही परुची क्लाइमेटिक फैक्टर्स कने मेडिटेरियन सी अछि बोली एठी रेनफॉल होची पर्शियन बुझ परछन तो हमें यदि हमें यार पर्सपेक्टिव को डिस्कस करबा देयर वुड बी क्लाइमेटिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस so these are the different perspectives will evolve or that would be drawn from there बुझ परछन Tethys Sea रु डिफरेंट पॉइंट्स हमको मिली जबो कि केमती हमें इकोनॉमिक हेल्प करूची तापर ये सब ए भी बुझ पारो तो दिस इज द प्रेजेंट कंडीशन Tethys Sea रा मु कहली मेडिटेरियन सी ठु नहीं कि हम पूरा देखिबा आसाम से दैट वुड बी Tethys Sea अच्छा Tethys Sea रो फॉर्मेशन हैला देन अबे आसीबो दिस इज द थर्ड स्टेज अराउंड केते हम देखो 145 मिलियन इयर्स अगो ताल देखो नाउ कहा जाए अराउंड 160 मिलियन इयर्स अगो 160 इंडिया स्टार्टेड सेपरेटिंग फ्रॉम हियर एठी भी लिखा है 145 ताले हम देखिबा ताले बिफोर दैट कैन एटी फिगर को भी देखो तो इंडिया वाज हियर so around 165 million years ago 165 million years ago India separated from Gondwana then started to 165 million years ago India separated and moved here तो एटा हिला इंडिया Indian landmass started to move 165 million years ago ताले ए टाइम रे एबे एथरे वेल्फ अल्फ्रेड वेगनर हैज नॉट टॉक अबाउट के फास्ट इंडिया हला तापरे गोंडो तापरे माडागास्कर सेपरेट हला तापरे ऑस्ट्रेलिया एमती से कहि नांती तो आमे देखिबा फास्ट ऑब्वियसली देयर वुड बी सेपरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑसिस इंडिया देन माडागास्कर एपोटे तमरो साउथ अमेरिका सो दैट मींस around 160 million years ago or 165 million years ago the Gondwana was started to distributed whole distributed हे गला and ये मध्य आडू को आसी गला तळु को किए पड़ेला अंटार्कटिका तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट हे गला तापर आसीला प्रेजेंट कंडीशन तापर देखो ये आउटी के थिला देन आउटी के ओपन अप हे गला देन ये हे गला पूरा ठीक अछि तो दिस इज हाउ सेपरेशन हैपेंड
इन द मीन टाइम सेपटे जदि हम देखा लॉरेशिया, सो हियर यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका इज सेपरेटिंग, नॉर्थ अमेरिका सेपरेट होची, एठी आउ टिके सेपरेट हैला, ता द्वारा किए ओपन अप होची नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ता द्वारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन ओपन होची, कना हियर वुड बी साउथ अटलांटिक ओशन ओपन अप हेगला, ये जेतले सेपरेट हेगला, देन सेंट्रल हैला, तापर लास्ट हैला नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ताले जेतले फॉर्मेशन ऑफ अटलांटिक ओशन लिखिबा तीनटा फेज रे लिखि देबो, फर्स्ट फेज साउथ सेंट्रल नॉर्थ, तीनटा फेज रे हम देखो लिखि परिबा। देन ग्रीनलैंड सेपरेट हैला, तापर कि हैला ग्रीनलैंड सेपरेट, ना ग्रीनलैंड सेपरेट हेगला कोठो, ग्रीनलैंड सेपरेट हबो नॉर्थ अमेरिका टू, तो ये एठू सेपरेट हेगला, बस ये पूरा आसीगला प्रेजेंट कंडीशन को। तो ये हेगला हमर प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास, दे आर सेपरेटेड विथ द जियोलॉजिकल टाइम्स रे जदि हम देखिबा सेपरेट हेछि, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अटलांटिक ओशन जदि हम कहिबा, सो दैट इज अटलांटिक ओशन इज यंगर comparatively when we compares to Mediterranean Sea, when we compare to Mediterranean Sea को जदि कंपेयर करिबा, यदि हमें पैसिफिक को कंपेयर करिबा, obviously Atlantic is younger, तो जदि ये देखिबा यंग कंपैरेटिवली। अच्छा ये पांजिया देखो धीरे धीरे सेपरेट केमती हैला ना मॉडर्न वर्ल्ड को आसिले, ठीक अछि, ये देखि परियो मॉडर्न वर्ल्ड को केमती आसिला, यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका सेपरेट हबो, ये सेपरेट हे गेला। सर गोटे डाउन हाँ ଯଦି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସर ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓशन ଯଦି ଏତେ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ତ କିଛି ମିଳୁନଥିବ ଆମକୁ ଅଏଲ ବଗେରା କି ଯାହା ବି यंग हेले मिलेनी, ओल्ड हेले मिले, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ମିଳୁନଥିବ। अटलांटिक ओशन रे मिलिबो मिलिबन काहे किछि पार्ट रे बे जियोग्राफिकल मिलिबो नॉर्थ सी रे वगैरह। अच्छा देखो हाँ एवे कथा रहिला कि तांको कहया कथा कि अटलांटिक ओशन रे ताले देयर वुड बी नो सच काइंड ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑयल नेचुरल गैस, oil and natural gas does not require hundreds of millions, that requires a few million years, a few million years. For example, the oil and natural gas forms are found in the coast of Gujarat in KG basin, jemti ke me Andhra Pradesh coast dekhiba in the KG basin, Krishna Godavari basin. These basins are not much younger older, let's say 50 million years, 30 million years, that would be enough to formation of or for the formation of gas and oil. This does not require 300-400 millions, but 300-400 million would be required for the coal formation like the anthracite coal, the best quality of coal, anthracite coal, that would be required. But for the oil and gas formation 30-40 millions 50 millions is enough to form that one, आराम से ही जीवो। तो तेणु करके हम देखा जीवो, तो हियर वुड बी आम आटलांटिक ओशन रो ताले भी लिखि परियो, तीनटा पार्ट लिखि परियो। फर्स्ट पार्ट ताकू केमती करिवो, कारण अटलांटिक फास्ट ए सपोज तुमको कह जो 150 वर्ड्स से तुम लिख फॉर्मेशन ऑफ अटलांटिक ओशन, वेदर यू आर रेडी टू राइट लिखि परिवो, ताले आंसर केमिति हबो। फास्ट कथा आगे अटलांटिक ओशन रो इंट्रो लिखिबो हला, इंट्रो लिखिलो, तापरे ताकू ड्रॉ करिवो, ताकू टे देखै देबो केमिति अछि ता शेप कोन, फिगर टे भी ड्रॉ करियो पड़िवो। आंसर कंपोनेंट रे दीडा मन रखिबा जिठू, if that's a 20 marks questions geography question, if any geography question asked to you 20 marks, there must be 2 figure, if it 10 marks 1 figure rahiba darkar, if that demands the figure or the question is having probability or opportunity to draw a figure, does not have to kon karibo jabardasti karibo na kono jaida kare, if it's having opportunity to draw the figure, in case of 20 marks 2 diagram you have to remember, in case of 10 marks 1 diagram or figure would be added to the answer, but figure must not be so much, matlab empty hi no ki that will cover whole the page, let's say this would be the page A for sheet, ठीक अछि, only this much part should cover your figure, बहुत ही कम, कहना पता चला कि पूरा एतिकी ड्रॉ कर देइछो, हाफ ऑफ द पेज इज गॉन, तो लिखिबो कोठी, तापर तो जगह नथिबो ना लिखिया पई, तुमको तो एडिशनल पेपर मिलिबोनी, क्वेश्चन तो प्रिंट होइके आसीबो ना सेइथरे, एठी क्वेश्चन लिखा हेइथिबो है ना, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हेछि, तापर एठु आउ गोटे क्वेश्चन स्टार्ट हबो, एतिकी जगह रे तुम आंसर लिखिबो, मेंस रे जेतरे तो ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिंट होइके आसीबो बुकलेट रे, तुम तमरे अब स्पेस रहिबोनी, सेते पे मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपोर्टेंट, otherwise तुम unnecessary stop will be added to the answer, then when the important things would be recalled by your mind or when you start to recalling the page is finished, ता द्वारा कौन हम आंसर हापाजाड हो ना, से आंसर निजे पढ़ले भी तापर निजक भी भल लगे, एग्जामिनर को केमती भल लगे बुझे,
तेणु से कह जाए आंसर राइटिंग इज मस्ट कंपलसरी तुमको टेस्ट सीरीज लिखा पड़ो एटलिस्ट 20-30 टेस्ट सीरीज 40 लिखा पड़ो सो दैट तुम जापर कि केमती मैनेज करा जाए हाउ टू मैनेज द टाइम पेपर लाइन ये सब मैनेजमेंट करिया पड़ो दिस इज वन काइंड ऑफ मैनेजिंग द टाइम एंड पेपर से टाइम रे से मैनेजमेंट नहले पूरा बेकार हो बुझिपारछन सो दिस मैनेजमेंट इज वेरी इंपोर्टेंट तेणु करके फिगर ऑलवेज इट शुड बी कैलकुलेटिव है फिगर को एमती ना कि बड़ फिगर हाँ बढ़िया से लिखिदेव से किसी हेनी ता द्वारा बुझिपारछ कि नहीं तो फिगर शुड बी स्मॉल आज बट क्लैरिटी रहिबा दरकार बट यू शुड हैव क्लैरिटी तो आटलांटिक ओशन सेमती सपोज तुमको कह कि राइट आटलांटिक ओशन 10 मार्क्स फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू टू राइट 10 मार्क्स फास्ट तुम इंट्रो रहिबो बट शुड नॉट राइट इंट्रो INTRO एमती लिखिबोनी सिंपल तुम स्टार्ट करो कि आटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम एंड एरिया जदि आम कहवा विच शेप इज ए शेप एंड कनेक्ट्स पोल टू पोल सिंपल हो गला सेपरेटेड जदि आम कहता ओशन इज बॉर्डर और सेपरेटेड बाय साउथ अमेरिका अफ्रीका ऑन द साउदर्न साइड द नॉर्दर्न साइड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया हो गला इंट्रो केते वर्ड हम हार्डली 50 वर्ड्स हम बट इंट्रो शुड बी कन्फाइंड टू 30 वर्ड्स केते 30 वर्ड्स रे तमरा इंट्रो रहिबो 30 वर्ड्स रो अधिक इंट्रो हबो नाही मैक्सिमम 30 वर्ड्स से इंट्रो रहिबो बुझि परछे नहीं कारण यू आर हैविंग 150 वर्ड्स बिकॉज ऑफ 10 मार्क्स 10 मार्क्स पे केते रहबो 150 वर्ड्स तो योर इंट्रो शुड बी प्रिसाइज एट 30 वर्ड्स 30 वर्ड्स भीतर तुमको लिखिया पड़ियो राइट कहना एटा जानिबा दरकार 25 to 30 वर्ड्स से इंट्रो रहिबो दैट मींस आई एम हैविंग रेस्ट 125 वर्ड्स 125 वर्ड 25 वर्ड्स और 10 वर्ड्स से मु कंक्लूजन करी बाकी रहिला 100 वर्ड्स बॉडी पार्ट मोर देन 100 वर्ड्स विल बी बॉडी पार्ट ठीक अच्छे तो एमती डिवाइड करा जाए एंड ये तो गोटे दिन रे हबनी यू हैव टू प्रैक्टिस ए लॉट बुझिपारछन अदरवाइज ये आज ठू जानिए दरकार कि आम केमिति आंसर को प्रेजेंट करिबा पूरा कैलकुलेटिव वे रे थाए जो टॉपर्स माने थांती दे आर वेरी कैलकुलेटिव विथ देयर वर्ड्स with their time, with the space, that means the paper, space means what, paper, with their content, which content would be more attractive, that I will add, बुझिपारछ नहीं तो सेटा को ऐड करिया पड़ो that does not means content is so much out there आजिकल कंटेंट रो किसी अभाव नहीं तो हाँ कि नहीं यूट्यूब ठू आरंभ कर इंस्टा ठू आरंभ कर जोटी खोल कंटेंट मिल जाव बट द थिंग इज दैट कि हाउ टू प्रेजेंट एंड क्लैरिटी एंड क्लैरिटी रहिबा दरकार जहाँ तुम प्रेजेंट करूच इट शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड रिटन नहले भी मार्क मिलबनी तुम जहाँ लिखुच तार क्लैरिटी नहीं एग्जाम में पढ़ी लास्ट कंक्लूजन से भी करि परिबनी यार कौन मु पढ़िली कौन पिला कहे पिन चाहूची बुझिपरना इट शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट पूरा क्लियर रहिबा दरकार and that should be precise clarity with precision नहले हबनी ठीक अछि तेणु आज एठू कीवर्ड्स को फोकस करबा एंड क्लैरिटी थॉट्स केतरा आसबो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कीवर्ड बुझि परछ नै तो सेतरे सपोज जने इंट्रो लिखिबो अटलांटिक ओशन the second largest ocean having a shape connects to pole and bordered by this continent कोडेटा वर्ड रह गेला आउरी कमी देली बुझि परछ नै सो दैट सेम कंटेंट खाली वर्ड मिनिमाइज हो गला कंटेंट चेंज करि कि सेम तापरे छोटिया फिगर गोटे कर देला हे गला तापरे सब फॉर्मेशन बा इवोल्यूशन जने लिखियो फॉर्मेशन जने लिखियो इवोल्यूशन ताले कोडा बेटर इवोल्यूशन ताले इवोल्यूशन तापरे लिखला इवोल्यूशन ऑफ अटलांटिक ओशन बुझि परछ नै तो एमिति ही तो इवोल्यूशन को मो कोन कहितली जेतले ताको बॉक्स कर देलो देन तमे इवोल्यूशन को हमें डिवाइड करिवा ठीक अछि तापरे तीनटा फेजेस रे ताको लिखियो इवोल्यूशन पासेस थ्रू 3 फेजेस फेज 1 साउदर्न पार्ट सेंट्रल पार्ट नॉर्दर्न पार्ट तापरे कंप्लीट एबे बुझि परछ ना साउदर्न पार्ट केमती हैला व्हेन दिस वन सेपरेटेड तापरे ये हैला ताले ये सेपरेट हे गेला ये सेपरेट हे गेले मिडिल पार्ट फॉर्मेशन हैला देन नॉर्दर्न पार्ट को आसला जेतर कहबा ग्रीनलैंड सेपरेट हे गेला ये लॉरेशिया तो कम्प्लीटली सेपरेट हो गला तो नॉर्दर्न पार्ट फॉर्मेशन हो गला ठीक अच्छे
तापरे तमे कनक्लूड करवा कनक्लूड रे कौन कराहबो कनक्लूजन रे कौन कराहबो ना ये जो ओशन आम कनक्लूजन जेतरे लिखा ता द्वारा आमर नेविगेशनल रूट ओपन हो गला बहुत सारा कनक्लूजन आम कौन करवा सो बिकॉज ऑफ दैट द नेविगेशनल रूट ओपन्स द बोथ पोल टू पोल्स कनेक्ट हो गला एंड ऑल्सो आम कहवा द फ्लोरा एंड फोनार डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गला कहीं फ्लोरा फोना भी डिस्ट्रीब्यूट हो ना सहित बस खत्म ठीक अच्छे माउंटेन फॉर्मेशन हो गला तो आम एंड करदे तो एमती की वर्ड्स को फोकस करी आंसर लिखा पड़ो एंड इट शुड बी प्रिसाइज क्लियर पूरा माने जन पढ़ला बेले ताकू जमती ऑब्स्टैकल फील न हुए प्लस ताकू इजीली बुझा पड़ुथवा ही और सी शुड सेल स्मूथली थ्रू द आंसर स्मूथली आंसर द्वारा जीव ना कि हेजिटेट हेनी कहीं तांकू कौन हम हेजिटेट आसिले कौन हुए एवरीबडी इज लाइक ए ह्यूमन बीइंग तो से गोटे दुईटा आंसर तुम पढ़ो तांको बहुत भल लगिला हैविंग आउ सब मन रख स्पेलिंग भूल हम ना है ना नो स्पेलिंग मिस्टेक्स कहीं दिज आर बहुत छोट छोट जिन को इम्प्रूव कले ही मार्क मिल किसी बिग थिंग्स दरकार नहीं ओनली स्मॉल स्मॉल थिंग्स नीड टू रिकल्स एंड इम्प्रूव स्पेलिंग को केबे मिस्टेक करबनी वर्ड वर्ड भितर गैप सेंटेंस सेंटेंस भितर गैप ताकि जने क्लियरली पढ़ी पारुथु that is not required point wise is best point wise है ना so always try to write the point wise answer should be in point bullet point और लेट से जदि तुम हेडलाइन देलो गोटे टॉपिक लिखिछ हेडलाइन देलो ता तळे एटा हला मोर हेडलाइन देन फेजेस को लिखली लेट से फेज 1 आ अंडरलाइन कली फेज 1 तुम लिखिलो तापर तार एग्जांपल भी तो दबो ना प्रत्येक पॉइंट को सब्सटेंशिएट करया पे गोटे एग्जांपल आमे दबा सपोज तुम कहूच कि स्टिल द चाइल्ड इन्फेंसाइट इज गोइंग ऑन लेट से तो तुम यदि एविडेंस न दे पाल ताल किए सुनिबो तुम कथा बुझ दैट मीन्स यू हैव टू प्रूफ योरसेल्फ थ्रू पुटिंग द रिपोर्ट जहाँ जो जहाँ पढ़ी थी से लिखो कि अमुक आसला रिपोर्ट रे रिपोर्ट रे लिखो ना कहीं शुणे ना विदाउट प्रूफ कहीं देखिए सो आंसर एग्जांपल दि जाए टू प्रूफ योर आंसर टू सब्सटेंशिएट योर थॉट बा जहाँ लिखिल है एग्जांपल बहुत जरूरी बिना एग्जांपल रे मार्क टोटाली भी मिल ना आउ देयर इज नो सिंपैथी एमती ना कि मुझे लिखी सार आ गोटे मार्क तो दे दिंतु जीरो दिहब जीरो नो सिंपैथी तुमको जब लगुच कि मुझे किसी भी लिखिदेवी एटलिस्ट गोटे मार्क तो मिल जाव एमती हुए ना एमती कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हुए जीरो मिले तुम पूरा 10 मार्क 20 मार्क क्वेश्चन लिख लास्ट तुमको जीरो मिल आंसर हाफ मार्क भी देवे जानच ना जान आटा हूँ हार्ड ट्रुथ यूपीएससी पूरा एमती करदे पूरा काटिदेवे जीरो मार्क देदेवे बुझीपार तुमको लगे कि सिंपाथी मो रहा 20 मार्क एटलिस्ट 2 मार्क देदेव जानते ना थे मुझे आगुरी कही यूपीएससी ओपीएससी दे आर द रिजेक्टिंग बॉडी दे विल ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज टू रिजेक्ट यू एंड टू पिक द अनदर पर्सन बुझीपार से अनदर पर्सन को नहीं जाए तुमको कहीं ने ठीक अच्छे तो बी प्रिपेयर फॉर द ओस्ट आज है तो ये में अटलांटिक ओशन को एमती आम लिखिपर सेमती मुझे कहली टेथिस सी को आम देखिले कि टेथिस सी तो जिते तुम टेथिस सी कथा लिखुच लेट से जड़े आंसर लिख ओबियसली हियर ही और सी विल डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट टू द प्रेजेंट डे टेथिस सी पुराणाटा तो कहीं भी लिखनी कि पुराणाटा लिखा भी दरकार नहीं जस्ट से लिटिल बिट जिगर कर दिया कि यस देयर वाज पालियोटेथिस सी ड्यूरिंग द पांचिया वन से लिखि दियो ना से ही बहुत इंपोर्टेंट हाँ कि नहीं पालियोर मीनिंग कौन ओल्ड एंशिएंट सो देयर वर पालियोटेथिस सी तुम लिखि दियो कि टेथिस सी देयर वाज टू टाइप ऑफ टेथिस सी वन वाज पालियोटेथिस सी एंड वर्तमान होची नियोटेथिस सी एटा हला नियोटेथिस सी दैट इज पालियोटेथिस सी सो दैट मीन्स द टेथिस सी is a long narrow water body which opened due to the separation of Laurasia from Gondwana. So this is the Neotethys sea, but there were also Paleotethys sea. तापरे हमें लिखिबा ए बुझ परसन सो Neotethys लिख लो ताको अंडरलाइन कर देलो पालियो लिख लो ताको अंडरलाइन कर देलो देन तार फॉर्मेशन लिख लो तापर सिग्निफिकेंस को आसीबो प्रेजेंट डे तार डिस्ट्रीब्यूशन मु कहितले कि मेडिटेरियन सी गल्फ पर्शियन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरेबियन सी राजस्थान गैंगटिक प्लेन आसाम वैली सो दिस ये पूरा पार्ट डिस्कस कर प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चरल एक पॉइंट देखिए ऑयल एंड गैस फ्रॉम दैट एंगल
फ्रॉम द नेविगेशन एबे देखो पूरा गल्फ ऑफ पर्शियन को आमे जाउछे ट्रेड नल हे परिबनी ना टूरिज्म होउची ट्रेड होउची ये केमती होउची पॉसिबल भाबो पूरा अरब कंट्री को पटे ट्रेड करूची पूरा हम देखो गल्फ ऑफ पर्शियन जो आउ केठे गल्फ ऑफ ओमान अच्छा इंडिया भी तो ट्रेड करूची बिकॉज गल्फ ऑफ ओमान दे कि हमर कोठी की जीवो सेंट्रल एशिया को जोटा को प्रोजेक्ट होउची हमर हाँ सेटा तो गोटे इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आउ गोटे अछि हमर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईरान हे की जीवो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ताल दिस कॉरिडोर्स हैव बीन डेवलप्ड एंड इवन इंडिया ओमान गैस पाइपलाइन इंडिया यूएई इकोनॉमिक यदि आम कहबा पार्टनरशिप ये सब पॉसिबल होउची इथि पई तो ताकू सब लिंक करिवो तो ये में ताले आकू देखिदेले टेक्सास सी रो आरो तापर अटलांटिक ओशन फॉर्मेशन देखिदेले ना इंडियन ओशन फॉर्मेशन देखो ना इंडियन ओशन देखो व्हेन इंडिया विल मूव टू दिस रीजन हियर वुड बी ऑस्ट्रेलिया इज मूविंग ताले दिस इज न्यू ओशन इज ओपनिंग हियर ताले एठी देखो a new ocean is opening India will comes to here this would be separated तादर गटे नुआ ocean formation हला the formation of Indian Ocean the formation of Indian Ocean ताले Indian Ocean केमती formation हला separation of India separation of Antarctica separation of Australia ये माने से separate है तादर गटे Indian Ocean formation हला the third largest ocean in the world हम याको Indian Ocean कहूचे then ये ही जीवो तो वाटर बॉडी हमें फॉर्मेशन देखि देले वाटर बॉडी गोटे गोटे हे परिबे खाली तो आपको वाटर लिखिबार अछि और कोन ना असुविधा हबो लिखि परिबो तो हां अटलांटिक ओशन हे जिवो तो फर्स्ट फेज लिखो फेज वाइज सेमती इंडियन ओशन को मध्य तमे लिखिबो कि इंडियन ओशन इज व्हाट द सेकंड थर्ड लार्जेस्ट ओशन आज ऑफ नाउ जदि एट प्रेजेंट हम देखिबा व्हिच इज नेम्ड आफ्टर इंडिया हां कि नहीं बॉर्डर बाय के यूरासियन कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका एंड आउ की अछि ऑस्ट्रेलिया ताकू लिखि देलो तापर तुम लिखो तार फॉर्मेशन तो फॉर्मेशन केबे लिखो द फॉर्मेशन स्टार्टेड कोठी लिखिबो ताले केते एज केते लिखिबो 165 मिलियन इयर्स एको सेठू लिखिबो जेतलो इंडिया सेपरेट हैला सेठू स्टार्ट करिवो if Indian continent started to separate from the Gondwana 165 million years that means that would be the point of formation for the Indian Ocean as well so the formation of Indian Ocean started late it was 165 or 160 million years ago when Indian plate started to separate from the Gondwana. In the meantime, the Australian plate also separating. ठीक अछि तापर तमे कोन करा एटाल केला इनिशियल फेज देन तापर आसो डेवलपमेंट एटाला इनिशियल फॉर्मेशन देन कम्स टू द डेवलपमेंट फेज एमिति लेखा हेइनी बट मोते त किछि भी करी को एग्जामिनर को इंप्रेस करियर अछि ना मोते एग्जामिनर को इंप्रेस तो मु गोटे लिखि दिबो कि डेवलपमेंट फेज एठी न लिखा थो तांकर लिखा हिनी बट मु लिखिबी कि डेवलपमेंट फेज मीन्स व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट्स गुडा एबे फास्ट मूव करिवो as the plates are moving the ocean is what growing and developing ना बुझी बनो तो मु एमिति तुमको जबरदस्त किछि गोटे मतलब ऐड करिकी जोटा कि भलो देखा जाउ तो सुना जाउ थो ऐड करिकी हमें गोटे ऐड कर दिले कि डेवलपमेंट फेज ऑफ इंडियन ओशन के व्हेन द इंडियन ओशन बिकम सैचुरेटेड हां कि नहीं तो सेटा लिखा कि बाय द टाइम ऑफ केते अच्छा हिमालय फॉर्मेशन के बेहला 65 हम कहबा 55 कहा जाए कि 65 रु 55 दैट मींस 65 रु 55 भीतर इंडिया इठी आसी पहुंची गेला तल दैट वुड बी द सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन एज वेल ना बुझा पड़िबने मो कहा कथा बुझबत दैट वुड बी सैचुरेटेड फॉर द इंडियन ओशन दैट मींस बाय हम कहबा 165 रे सेपरेशन स्टार्ट हैला बट 65 रे कंप्लीट हे गेला दैट मींस इंडिया जेतले माउंटेन हिमालय फॉर्मेशन स्टार्ट होची और इंडियन प्लेट आसिकी यूरेशियन प्लेट को टकराउची सो देयर इंडियन ओशन इज कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ओशन इज कंप्लीट ना बुझा पड़िबन कहा को बुझा पड़ुची समस्तन को दैट मींस आमी जेते लिखबो तो डेवलपमेंट फेज ग्रोथ तापर लिखबो इनिशियल बा इंसेप्शन फेज और इंसेप्शन फेज ऑफ इंडियन ओशन 165 मिलियन इयर्स अगो डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज दैट वुड बी आमी कहबा ताले कोन सेपटू 60 माइनस कर दियो तले इट वुड बी 100 मिलियंस अराउंड 100 मिलियन तले मझिरे हे गेला एपटे 65 हिमालय पई सेपटे 65 रहला किए 165 तो मझिटा कोन मिडिल टा दैट मींस अराउंड 100 मिलियंस तो 100 मिलियन को हम कहबा कि दैट मींस अराउंड 100 मिलियन इयर्स जदि हम कहबा ए जो टाइम ता थला दैट वाज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज ऑफ
इंडियन ओशन तो से लिखो कि हेडलाइन कौन देवा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशन हियर द इंडियन प्लेट मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर बिकॉज ऑफ कह पोलार फ्लिंग फोर्स सेटा पुणी ये आम ऐड करवा द आफ्रिकन प्लेट सॉरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट आल्सो मूव्ड बाय दैट इज व्हाई द न्यू ओशन फॉर्मड ठीक अच्छे आगे ना खाली डिक्टेट करदेवी जब कह जोटा न लिखिपर मत कह मुझे डाकीदेवी है ठीक अच्छे तो दिस कुड बी देयर तो आज ऑफ नाउ आम ये ओशन को देखीदे मुझे काली ना डाकीदेवी ये सब है नेक्स्ट हियर वुड बी एविडेंसेस अच्छा ठीक है एविडेंसेस देखीदेवा ये तो थे आमर प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्टिंग द कॉन्टिनेंट हाउ द कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग ना ड्रिफ्ट कर जाना केमती प्रेजेंट एविडेंस अच्छी जमती इंडियन प्लेट इज मूविंग 2 to 5 सेंटीमीटर्स ठीक अच्छे तो एविडेंस अच्छी एमती ना कि एविडेंस ना एविडेंस अच्छी ना एविडेंस देख हियर इज सम एविडेंसेस कहना विदाउट एविडेंसेस कहीहबनी लाइक मेसोसोरस ये केमती देखा देख रेप्टाइल्स टा एज ए रेप्टाइल्स हाँ कि नहीं तो ये देख केमती क्रोकोडाइल भाई देखा मेसोसोरस आना मेसोसोरस now this reptile used to be there माने आरो जो फॉसिल एविडेंस here in Africa and South America ताले भाबो आज ऑफ नाउ दिस मेसोसोरस डज नॉट हैव ये तो आउ एग्जिस्ट करे नहीं बट आर फॉसिल एविडेंस अच्छी बट द फॉसिल एविडेंसेस शोज दैट इट यूज्ड टू प्रेजेंट हियर इन आफ्रिका एंड साउथ अमेरिका ताहले वर्तमान ये दी जन भितर वाइड आटलांटिक ओशन बहुत बड़ आटलांटिक ओशन आकु तो पार कर एपट सेपट जाई परिबनी ताहले जियोलॉजिकल पास्ट रे दीटा लैंड गोटे जगह थिला न बुझा पड़ोनी आ कथा भी छाड़ तुमको लगे हाँ पहरिक पलि जदि हो ताले या कथा कौन हम या कथा देख दिस इज व्हाट ग्लोसोप्टेरिस ये ग्लोसोप्टेरिस कौन ये गोटे फ्लोराटा बा ग्रासेस टाइप रो अच्छा ये कौटी देखा जाए इंडिया रे मिलूची एविडेंसेस अंटार्कटिका रे मिलूची ऑस्ट्रेलिया रे मिलूची चारियाडे मिलूची कहले सबू गोंडवाना लैंड रे आरो एविडेंसेस तो ये केमिति हेबो कि गोटे स्पीसीज दैट इज इवन अंटार्कटिका तो बर्तमान तो हो पारिबनी अंटार्कटिका डज नॉट परमिट द क्लाइमेट एट प्रेजेंट टाइम दैट वुड नॉट अलाउ टू ग्रोथ ऑफ द फ्लोरा हाँ लेट्स क्या एबे तो स्टार्ट होची पुनी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज बट आज ऑफ नाउ ये एविडेंसेस तो मिलिया कथा ना बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन दैट मीन्स ये सेते बेले ये माने गोटे जगह थिले बोली से गोटे जगह मिलुथिला एतमे अलगा हो गले बट एविडेंसेस अछि तो एविडेंसेस रे आम ये फिगर कर देकी तुम जदि कर बस ताकू ड्र करदेव एम को लिखिदेव यहाँ किए आसला साइनाग्राथस कौन मिल आफ्रिका आउ साउथ अमेरिका बस एम ना लिखी मन रखा बहुत जरूरी क्या तुम जो एविडेंसेस लिख हाँ हाँ ये साइनाग्राथस देखिथो ये लैंड रे रोहतले सब साइनाग्राथस लिखिदे था खाली एम एविडेंसेस गुड़ा ना गुड़ा लिखिथो एविडेंसेस रो ये है तुम फॉसिल एविडेंस तापर एमती जियोलॉजिकल रॉक एविडेंस को परे जिबा दीज आर फॉसिल एविडेंस फर्स्ट है साइनाग्राथस CYNO GNA THUS जो मैंने ऑनलाइन अच्छे तुमको आसूची ठीक ठाक आसूचे ना बुझा पड़ुची किसी असुविधा होनी राइट साइनाग्राथस CYNO GNA THUS साइनाग्राथस ये रेप्टाइल्स अगेन किंतु ये लैंड रहूला तो बेसिकली ये लैंड रहूला ये भी रेप्टाइल्स टा बट आर एविडेंसेस कोठी मिले प्रेजेंट है आफ्रिका एंड साउथ अमेरिका बस एतिक दरकार तुमको the fossil evidences presented distributed in Africa and South America that means it used to live on this part of the world but as the continent separated that is why the evidences are also distributed otherwise the huge Atlantic Ocean would not be possible or may not be possible to cross these reptiles ये cross करि परिबो नाही वर्तमान टाइम रे सेथमे एविडेंसेस बोथ साइड रोची माने लैंड दीटा एकाठी थिला फॉसिल टा डिस्ट्रीब्यूट हो गला साइनाग्राथस पर आसवा मेसोसोरस MESO SAU RUS मेसोसोरस
Mesosaurus. So this one is what? Mesosaurus जदि आमे देखिबा distributed all the way Africa and South America. ये भी fossil evidences and reptile. ये land water लेखनी मतलब the evidences are only found right now on the land, not in water. कारण मैंने land रोहुतले basically तो water तो मिलिबो नहीं ना. Then comes to Listosaurus. Here you can say Listosaurus, Lystro, Lystro, Saurus, Saurus, Listosaurus, Lystros, Autrus, Listosaurus, Saurus, Listosaurus. Then here would be Glossopteris, GLOSS, GLOSSOPTERIS, Glossopteris. ये फ्लोराटा बाकी जो गुड़ा रहिला फौना. ये कोठी कोठी मिलुची देख चारियाठी मिलुची हे जिवो. These are the fossil evidences. बाकी evidences अछि तो एटा evidences को हम दी भाग रे भाग करबा. गोटे हला geological evidences, गोटे रहबो fossil evidences. So these are the fossil evidences. Hello. लिखी दिलो ना इटा. Here would be the geological evidences. है ना. अच्छा ये जियोलॉजिकल एविडेंसेस खाली टिके कहि दिए. दीज आर द रॉक एविडेंसेस बा में जाऊ कहबा जियोलॉजिकल एविडेंसेस अर्थात द रॉक. देखो एथरे कोन कहबा हमें कार्बन डेटिंग को यूज करबा हमें. सो दैट वुड बी यूज एज कार्बन डेटिंग. तो द रॉक हियर एंड हियर ए मान को सेम एज और कंपोजिशन कहले जो रॉक वर्तमान द रॉक्स आर फाउंडिंग हियर इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड हियर केप ऑफ एट लिखा है केप fold belt, that means Cape of Good Hope ame kahiba. The rock found in Cape of Good Hope and the rock found in Argentina coast, they are having same age, mineral structure, composition, age, everything. Tale ye kemti habo? Eta sambhav only it would be possible if they were together in the geological past. That would be. This is why this one here is what? Which mountain? Atlas mountain. Here is Appalachian mountain. So both the mountains are having same जदि हम कहबा तो एमान कर लगभग Appalachian माउंट तो एठी फॉर्म ना तुम कहबा एठी काहे केला जेतले पांजिया 1 क्लोज होउथला क्लोज हेले ए दीटा टकरेइबो फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन. ध्यान से सुनो जेतले फॉर्मेशन ऑफ अटलांटिक अटलास माउंटेन हम लिखिबा तो बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ पांजिया 1 एंड कोलिजन बुझि परछ नै काना एबे भाबो एति की सेपरेट हेजी तो एबे ड्रैग कर दियो. तो ड्रैग कर एटा एठी टकरेइबो ता द्वारा एठी कोन हबो अटलास माउंटेन हबो एपटे Appalachian हबो बुझि परछ न बुझिबो तो एटा सेतबेल हेतला. सो दिस साइड वुड बी माउंटेन्स. सो दैट इज व्हाई यू करे को माउंटेन अछि पेनाइन अपेनाइन कोठी अछि इटली. सो दिस माउंटेन्स ये जो हमें देखिबा सो मिडिल रे की अछि अटलांटिक ओशन. तो अटलांटिक ओशन रो बोथ साइड रे जदि हम रॉक को स्टडी करबा देयर एज कंपोजिशन स्ट्रक्चर सेम. How does it possible? So this is not possible. This may not be possible if they were not together in geological past. So this is possible as of now. The evidences are clear that they were past in the geological past. They were binding together or they used to together. But because of the continental drift theory or because of the continents were driving away or plate tectonic jahaku tame kahi paribo, they moved away and that is why the evidences are also part away. Otherwise the they were together in geological past and that is why the structure of the rocks, minerals and their ages are same. तो एटा हमरो geological evidences मिल जिवो. Then ये जो येलो लिखा है कोन these are the हम कहबा glacial mark. ए माने होचोंती glacial mark. जेमते कि Indian मु कहितला peninsula is having the glacial scars mark. तो that is also evidence. छेटा भी गोटे evidence, ये भी evidence. तो these are the evidences हमें. तो ये सब एविडेंसेस ठीक अछि.
तो ओवरऑल तो बुझा पड़ी जीवो एबे ताहले है ना बुझा पड़ुची जो माने ऑनलाइन रे अछो तो माने